નમસ્કાર. સદન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા આજે આયોજિત અવેરનેસ સેશન ઓન એન્શ્યોરિંગ સેફ્ટી એન્ડ કમ્પ્લાયન્સીસ. આપ સર્વ મિત્રોનું સ્વાગત છે. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના માનદ મંત્રી શ્રી નીરવભાઈ મંદરેવાળા, રિટેલ કમિટીના શ્રી પ્રમોદભાઈ ભગત અને અમારા પાસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી દિલીપભાઈ ચશ્માવાળા અને અહીં ઉપસ્થિત સર્વ ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટનું અહીં સ્વાગત છે. આ બાબતે વેલકમ સ્પીચ માટે હું ચેમ્બરના માનદ મંત્રી શ્રી નીરવભાઈ માંદલેવાળાની વિનંતી કરીશ. નમસ્તે, ગુડ ઇવનિંગ ટુ ઓલ. આમ તો જોવા જઈએ સુરતમાં દિવાળીનું પ્રી દિવાળી સેલિબ્રેશન ચાલુ થઈ ગયું છે. એનો માહોલ પણ આજના પ્રોગ્રામમાં આપને જોવા થોડો મળી રહ્યો છે. પણ આજનો જે કાર્યક્રમ આપણે રાખ્યો છે, અવેરનેસ સેશન ઓન એન્શ્યોરિંગ સેફ્ટી એન્ડ કમ્પ્લાયન્સીસ. આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત BIS સુરતના જોઈન્ટ ડિરેક્ટર શ્રી નિખિલભાઈ રાજ, ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર શ્રી ધનરાજભાઈ કરાડ, BIS સુરત ઓફિસના સિનિયર ડિરેક્ટર એન્ડ હેડ શ્રી SK સિંઘ સાહેબ, સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ, અમારા માર્ગદર્શક એવા દિલીપ કાકા ચશ્માવાલા, સિનિયર અમારા મેમ્બર એવા પ્રમોદભાઈ ભગત, નૈનેશભાઈ પચ્ચીકર અને ઉપસ્થિત સૌ અલગ અલગ ચેમ્બરના કમિટીના પદાધિકારીઓ અને ઉપસ્થિત મિત્રો, આપ સૌને આજના કાર્યક્રમમાં હું હૃદયપૂર્વક આવકારું છું. મિત્રો, BIS બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટેન્ડર્ડ એ ભારતની રાષ્ટ્રીય માનક સંસ્થા છે, જેની સ્થાપના ઉત્પાદનો જરૂરી ગુણવત્તા અને સલામતીના માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે કરવામાં આવી છે. ગ્રાહકોનું રક્ષણ કરવા અને ઉત્પાદનની વિશ્વસનીયતા સુનિશ્ચિત કરવા BIS એ વિદ્યુત ઉપકરણો સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં 20,000થી વધુ ધોરણો વિકસાવ્યા છે. વિદ્યુત ઉત્પાદનો માટે BIS ધોરણોનું પાલન ન કરવાથી આગના જોખમો, વિદ્યુત આંચકા અથવા સાધનોની નિષ્ફળતા સહિત ગંભીર પરિણામો આવી શકે છે. એનાથી આપણે સૌ જાણકાર છીએ. ભારતમાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રહેણાંક અને વ્યાપારી જગ્યાઓમાં આગ સંબંધિત 30%થી વધુ ઘટનાઓ ઇલેક્ટ્રિકલ શોર્ટ સર્કિટને કારણે થઈ છે, જે સલામતી ધોરણોનું પાલન કરવાની મહત્વપૂર્ણ જરૂરિયાતને પ્રકાશિત કરે છે. BIS પ્રમાણપત્ર હવે 200થી વધુ વિદ્યુત ઉપકરણો માટે ફરજિયાત છે. તે સુનિશ્ચિત કરે છે કે ઉત્પાદનો ઉત્તમ સલામતી અને પ્રદર્શન ધોરણનું પૂર્ણ કરે છે. BIS ધોરણો ISO અને IEC જેવા ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય સલામતી ધોરણોની સમકક્ષ છે, જે સુનિશ્ચિત કરે છે કે ભારતીય ઉત્પાદનો વૈશ્વિક બજારોમાં સ્પર્ધા કરી શકે. ભારત ઇન્ટરનેશનલ ઇલેક્ટ્રોટેકનિકલ કમિશન IEEC નો એક ભાગ છે, જે વિશ્વભરમાં વિદ્યુત સુરક્ષા ધોરણોને સુમેળ કરે છે. સુરક્ષા અને BIS ધોરણોનું પાલન સુનિશ્ચિત કરવું એ માત્ર નિયમનકારી જરૂરિયાત નથી, તે જીવનનું રક્ષણ કરવા અને ઉત્પાદનની ગુણવત્તા વધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. આજના કાર્યક્રમમાં આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત વિવિધ વક્તાઓ આની ઉપર આપ સૌને વિસ્તૃત માહિતી આપશે અને આપ બી આ માહિતી મેળવી આપના પોતપોતાના ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, આપના રોજગાર વ્યવસાયની અંદર આનું અનુકરણ કરી કેવી રીતના BIS સ્ટેન્ડર્ડનું આપને પાલન કરી આપના ઉત્પાદનો જે છે તેને કેવી રીતના હજી સારી એનાથી લોકોને સેવા આપી શકીએ, એના માટે આ કાર્યક્રમ ધી સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા રાખવામાં આવ્યો છે. ફરી એકવાર આપ સૌનું આ કાર્યક્રમમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધન્યવાદ. હવે આ કાર્યક્રમને આગળ ધપાવવા હું આ કાર્યક્રમને આપણા જે BISના હેડ SK સિંઘ સાહેબ, પછી શ્રી નિખિલભાઈ રાજ અને ધનરાજભાઈ કાકડનું સ્વાગત અને સન્માન કરવા માટે હું
ચેમ્બરના માનદ મંત્રી શ્રી નીરવભાઈ માંડલેવાળાને વિનંતી કરીશ. થેન્ક યુ નીરવભાઈ. હવે આ કાર્યક્રમની જે આપણો અવેરનેસ સેશન એન્ડ એશ્યોરિંગ એન્ડ સેફ્ટી એન્ડ કમ્પ્લાયન્સીસનો પ્રોગ્રામ વિશે માહિતી આપવા માટે હું આપણા BIS હેડ શ્રી સિંઘ સાહેબને વિનંતી કરીશ. गुड इवनिंग. सर्वप्रथम माननीय नीरव जी, प्रमोद सर, नैनीश जी एवं सभी विशिष्ट अतिथिगण, भारतीय मानक ब्यूरो की सूरत शाखा कार्यालय की तरफ से इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. साथ में SGCCI को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया. और कुछ कारणों से शायद अटेंडेंस कम है. उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ मेन तो टेक्सटाइल का ही काम है. उसका अगर कोई प्रोग्राम होता है तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोग आते हैं. बट स्टिल इम्पॉर्टेंस तो इस सब्जेक्ट की इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि भारतीय मानक ब्यूरो एक तरफ मानक स्टैंडर्ड्स बना रहा है, सर्टिफिकेशन भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ हमें इंडस्ट्री तक स्टैंडर्ड्स का मैसेज और सर्टिफिकेशन कैसे होता है ये बताना भी उतना ही ज़रूरी है. इसी कड़ी में हम लोग अलग अलग जगह पर जा कर के इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं. मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जैसे जितने भी GIDCs हैं उनकी जितनी भी एसोसिएशंस हैं सभी के साथ लगभग हम एक एक प्रोग्राम इस तरह का अलग अलग सब्जेक्ट पर या कॉमन सब्जेक्ट पर हम कर चुके हैं. साथ में पर्पज़ क्या है इस प्रोग्राम का? भारत सरकार बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल आर्डर्स ला रही है. वो क्वालिटी कंट्रोल आर्डर्स लाने के बाद वो प्रोडक्ट बिना BIS के सर्टिफिकेशन के हमारे देश में ना तो बनाए जा सकते, ना बेचे जा सकते और ना ही इंपोर्ट किए जा सकते. तो ये इम्पॉर्टेंट सभी के लिए हो जाता है, वो चाहे बनाने वाला हो, चाहे इंपोर्ट करने वाला हो, चाहे बेचने वाला हो, कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट में क्वालिटी कंट्रोल आर्डर आ चुके हैं. अगर हम इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की बात करें तो आज की डेट में जो टोटल हमारी संख्या है मैंडेटरी प्रोडक्ट की 688 है. 688 में 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल के, और वो भी इंडियन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. तो उससे ज़्यादा होंगे क्योंकि कुछ ही इंडियन स्टैंडर्ड ऐसे होंगे जो एक से ज़्यादा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट कवर करता है. अगर हम बात करें स्विच सॉकेट से लेकर केबल, ट्रांसफार्मर से लेकर के हमारे जितने भी डोमेस्टिक, चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, एयर कंडीशनर हो, या फिर चिमनी जो हुड है. अभी जो सबसे लेटेस्ट क्वालिटी कंट्रोल आर्डर आया है अभी पिछले महीने, मतलब 30 सितंबर के आसपास ही, उसको देख के मैं खुद भी हैरान हो गया कि क्या इस लेवल तक भी हमारी सरकार जा रही है. मतलब हमारे जैसे सेवर है, ट्रिमिंग, हेयर ड्रायर है, वैक्यूम क्लीनर है, इन सब की इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंश्योर करने के लिए लगभग जितने भी टाइप के, इवन जो नाई आपका फेस के लिए
या इवन आपके लेज़र ट्रीटमेंट के लिए जो डर्मेटोलॉजिस्ट मशीनें यूज कर रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स तक भी भारत सरकार क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में अभी ला चुकी है और बहुत जल्दी मतलब अगले 6 महीने 8 महीने में लागू हो जाएंगे। जबकि इनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट हो सकता है हम लोग यहाँ ना बना रहे हों, काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स होंगे जो इंपोर्ट कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बाद में उन्हें उन्हीं वेंडर से इंपोर्ट करना है जिनके पास BIS सर्टिफिकेशन है, या फिर यहाँ जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन्हें तो BIS सर्टिफिकेशन लेना ही है। तो इस पर कार्यक्रम का उद्देश्य 2 है। पहला, जो BIS का सर्टिफिकेशन कैसे लेना है या कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे QCO में है, और दूसरा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए कौन कौन से पैरामीटर इम्पॉर्टेंट है, किन किन पैरामीटर्स के माध्यम से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंश्योर की जाती है, तो उसके बारे में जानकारी मिस्टर धनराज देंगे। और BIS का जो सर्टिफिकेशन है उसके बारे में मिस्टर निखिल राज देंगे। तो मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करूंगा। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपके किसी भी तरह के डाउट्स हों तो ये प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हमारा जो कार्यालय है, ऑफिस है, BSNL का जो घोड़दौड़ रोड में बिल्डिंग है, उसमें फर्स्ट फ्लोर पूरा हमने रेंट पर ले रखा है। आप कभी भी बाद में भी जानकारी के लिए आ सकते हैं। तो आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आभार। थैंक यू सिंह साहब। सिंह साहब ऐसे हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और हमारी इंडस्ट्री से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनका टच जब राजकोट में थे तभी से उनके साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन था। जब हमारी इंडस्ट्री में उनका कुछ भी इश्यू आता था तो वो गुजरात के लिए हमको कॉल किया करते थे, तब से उनके साथ में कोऑर्डिनेशन था। थैंक यू सिंह साहब। प्रोफेसर निकुंज राज साइंटिस्ट डेप्यूटी जॉइंट डायरेक्टर हैं और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करंटली पोस्टेड इन BIS सूरत के ब्रांच ऑफिस में हैं। उन्होंने BTech किया है, केमिकल इंजीनियर हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने किया है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने किया है। उनका प्रीवियस पोस्टिंग था अहमदाबाद एंड राजकोट। तो मैं निकुंज जी से अनुरोध करूंगा कि वो निखिल जी प्लीज़ आपका जो ये आपके जो फैकल्टीज़ है उनके बारे में जो हमारा जो ये सेशन है उसके बारे में हमारी जानकारी दें प्लीज़। मेरी प्रेजेंटेशन 2 पार्ट्स में होंगी। सबसे पहले हम लोग BIS के ओवरव्यू के बारे में जानेंगे कि BIS की स्थापना कैसी हुई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सारी चीज़ें जानेंगे और BIS क्या क्या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और क्या क्या करता है हिंदुस्तान में, वो उसके बारे में जानेंगे। उसके पश्चात हम लोग क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या होते हैं, आपको कैसे देखने हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में उनके कॉन्ट्रावेंशन में क्या दिक्कतें आती हैं, कोई अगर उनको वायलेट करता है तो सरकार ने उनके ऊपर क्या दंड का प्रावधान रखा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। BIS की स्थापना भारत सरकार ने एक रेजोल्यूशन 3 सितंबर 1946 को पास किया जिसमें ISI इस्टेब्लिश हुआ, जिसको हम आज के तौर पे BIS के नाम पे जानते हैं। फिर 8 जनवरी 1947 प्री इंडिपेंडेंस BIS एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन बना। सबसे पहला सर्टिफिकेशन मार्क एक्ट 1952 में स्टार्ट हुआ। फिर भारत सरकार ने BIS के थ्रू सर्टिफिकेशन मार्क की स्कीम, जिसको हम ISI मार्क स्कीम कहते हैं, 1955 में चालू की। उसी प्रकार जो BIS एक्ट फिर उसके बाद 1986 में बना, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 1987 को BIS को एक स्टैच्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला। फिर BIS एक्ट 2016 इन्फोर्स हुआ, जिसके अंतर्गत 12 अक्टूबर 2017 को BIS को एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी का दर्जा मिला और उसी के अंतर्गत BIS के कन्फर्मिटी असेसमेंट रेगुलेशंस जून 2018 में इनैक्ट हुए और सिमिलरली BIS के हॉलमार्किंग रेगुलेशंस जून 2018 में इनैक्ट हुए।
BIS का ये BIS है, जहाँ BIS लोकेटेड है। BIS का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और जिसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड सेंट्रल। 41 ब्रांच ऑफिसेज हैं। अपने गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 ब्रांच ऑफिसेज हैं, नेमली सूरत, अहमदाबाद, गांधीधाम एंड राजकोट, और 8 BIS की लैबोरेटरीज़ हैं। BIS का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, वो नोएडा में लोकेटेड है। सूरत ब्रांच ऑफिस के ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं। सूरत ब्रांच ऑफिस के ज्यूरिसडिक्शन में हम लोग गुजरात के 9 डिस्ट्रिक्ट्स, महाराष्ट्र के 2 डिस्ट्रिक्ट्स धुले नंदुरबार, मध्य प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट बरवानी, और यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली दमन, ये हम लोग कवर करते हैं। सूरत की हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो सूरत, बड़ौदा, भरूच, तापी, नर्मदा, डांग, छोटा उदयपुर, नवसारी और वलसाड़ BIS सूरत कवर करता है। BIS की कोर एक्टिविटीज़ के बारे में जानते हैं। BIS का जैसे आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन मेन काम है, उसी के साथ साथ कन्फॉर्मिटी असेसमेंट, जिसके अंतर्गत हम लोग हमारे मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस प्रदान करते हैं। उन्हीं लाइसेंस को प्रदान करने में उनके जो सैंपल्स की जांच होती है, उसमें हम लोग लैबोरेटरीज़ का भी एक्टिविटीज़, जो जहाँ पे टेस्टिंग होती है, BIS उनको उसकी लैबोरेटरी एक्टिविटी भी करता है, लैब्स को रिकॉग्नाइज करता है। फिर हॉलमार्किंग स्कीम एक बहुत लेवल पे BIS प्रोपेगेट करता है। उसी प्रकार ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में भी BIS का बहुत इन्वॉल्वमेंट है। BIS के जो जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो टेक्निकल डिवीज़न काउंसिल्स के थ्रू बनाए जाते हैं। जो जैसे मान आज की जो हमारी यहाँ मीटिंग है वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो जो उनके अंतर्गत आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ETD डिपार्टमेंट जो है वो बनाते हैं उनको, इलेक्ट्रोटेक्निकल डिपार्टमेंट्स। उसी प्रकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स को के स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट और उनके रिवीजन और अमेंडमेंट्स करते हैं। पेट्रोलियम एंड कोल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो हर एक डिवीज़न काउंसिल BIS ने डिवाइड कर रखी है, जिनके अंतर्गत उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का फॉर्मुलेशन होता है। BIS ने टोटल 23,000 से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। इन स्टैंडर्ड्स में प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स भी हैं, मेथड ऑफ टेस्ट भी हैं, और भी कई हैं टर्मिनोलॉजी के स्टैंडर्ड्स हैं। ये सारे स्टैंडर्ड्स मिलके लगभग 23,000 से ज़्यादा होते हैं। और 2023-24 में 920 स्टैंडर्ड्स नए बने हैं, और 2023-24 में ही लगभग 1300 के लगभग स्टैंडर्ड्स रिवाइज हुए हैं। और स्टैंडर्ड्स जो कि हार्मोनाइज किए हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो इंडिया के उसमें को हार्मोनाइज करते हैं, उनको मोर देन 6500 है। BIS का बहुत सारा योगदान इंटरनेशनल लेवल पे भी है। तो BIS इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर है। मेंबर टेक्निकल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ ISO फ्रॉम जनवरी 23 टू December 25। member of Standards Management Board of International Electrotechnical Commission IEC since 2015, further elected from 1st January 2021 to March 2024. BIS participates in more than 500 technical committees, subcommittees of ISO and 100 plus technical committees and subcommittees of IEC. BIS is also observer member in 190 plus technical committees, subcommittees of ISO and 70 plus technical subcommittees of IEC. BIS also has secretariats for 3 technical committees and 8 subcommittees of ISO, जिसमें BIS को सेक्रेटरीशिप मिली हुई है। रीजनल लेवल पे भी BIS का काफ़ी इम्पैक्ट है। BIS is actively involved in standardization under regional and multilateral platforms such as South Asian Regional Standards Organization SARSO, Pacific Area Standards Congress PASC, BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa, and also IBSA. BIS has a chair of Technical Management Board and of the Board of Conformity Assessment at SARSO. BIS is nominated as convener for 26 working groups of ISO and 15 working groups
और सिस्टम इवैल्यूएशन ग्रुप्स ऑफ आईईसी। कन्फर्मिटी असेसमेंट के बारे में जानते हैं। BIS 10 स्कीम्स चलाता है, यहाँ पे 8 मेंशन्ड हैं, जिसके अंतर्गत BIS मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस प्रदान करता है या सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी प्रदान करता है। आपने सबसे पहला जो चिन्ह वहाँ देख रहे होंगे स्कीम 1 के अंतर्गत, जो ISI मार्क स्कीम है, वो स्कीम 1 के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरर्स को ISI मार्क प्रदान करते हैं लाइसेंस के तौर पे। उसी प्रकार जो दूसरा चिन्ह आप देख रहे होंगे वो रजिस्ट्रेशन मार्क है, जो कि स्कीम 2 के अंतर्गत BIS चलाता है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सरकार ने नोटिफाई किए हैं, उसके अंतर्गत तो उसमें सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन जो कि है वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन स्कीम है, थर्ड पार्टी एश्योरेंस स्कीम है, जो कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको थर्ड पार्टी लैब में जांच कराएंगे। अगर वो सही पाया जाएगा तो आपको लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, जो कि इनहेरेंटली एक वॉलंटरी नेचर में है, लेकिन सरकार वक्त वक्त पे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ला के उनको मैंडेटरी भी करता है। अभी मोर देन 650 प्रोडक्ट्स मैंडेटरी हो चुके हैं। और BIS एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन स्कीम्स भी चलाता है, जो कि सन 2000 में चालू की गई थी, जिसके अंतर्गत जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स जो प्रोडक्ट्स मैंडेटरी में आ गए हैं और हिंदुस्तान में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम को भी, जैसे कि मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको सरकार ने नोटिफाई किया है, उनको रजिस्ट्रेशन स्कीम भी सरकार BIS चलाता है, जिसका 2012 में स्थापना हुई। अभी एज ऑन डेट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि सर्टिफिकेशन में हैं वो लगभग 1300 हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि 1300 स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट्स सर्टिफिकेशन में, उनमें से 750 प्लस मैंडेटरी हो चुके हैं एज ऑन डेट। और पूरे हिंदुस्तान में इस समय 48,000 से ज़्यादा लाइसेंसेज ऑपरेटिव हैं BIS के। इन 1300 प्रोडक्ट्स के ऊपर लाइसेंस लिया है जिन्होंने। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के बारे में हम क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में विस्तार से जानेंगे, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में हैं। सिलेंडर हो गया आपका, कुकर, टॉयज़ हो गए खेलने के, और ये केबल्स, सीमेंट, स्विचेस, आयरन एंड हेलमेट। फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन स्कीम को BIS ने 1999 में लॉन्च किया, जो कि जिसके अंतर्गत जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सीमेंट, वुड प्रोडक्ट्स, स्टील प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स और क्लिनिकल थर्मोमीटर्स एक्सेट्रा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। अभी काफ़ी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स भी इस स्कीम में आ गए हैं। पूरे वर्ल्ड में 1750 लाइसेंस ऑपरेशन में हैं, जो कि फ्रांस, दुबई, साउथ कोरिया, नेपाल, इटली, चाइना जैसे देशों में ऑपरेटिव हैं। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम के बारे में जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी METI फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स 63 प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज है, जिसके अंतर्गत उन्होंने उसको मैंडेटरी किया हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिसके अंतर्गत 5 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक एंटरप्राइज के अंतर्गत कुछ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंडेटरी की लिस्ट में आते हैं। एज ऑन डेट जो रजिस्ट्रेशन के जो लाइसेंसेज हैं हिंदुस्तान में वो 25,000 से ज़्यादा हैं, और 2023-24 में 1500 से ज़्यादा लाइसेंस BIS ने ग्रांट किए हैं। BIS मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन स्कीम भी चलाता है, जिसके अंतर्गत जो मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके प्रदान किसी सिस्टम को सर्टिफाई करने के लिए BIS किसी मैन्युफैक्चरर को सिस्टम को सर्टिफाई करता है, जिसके अंतर्गत 18 वेरियस मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन जो स्टैंडर्ड्स हैं उस पर BIS लाइसेंस प्रदान करता है। और हिंदुस्तान में 1459 के लाइसेंस एज ऑन 31 अगस्त 2024 को ऑपरेटिव हैं।
BIS का एक बहुत मेजर एक्टिविटी एक लेबोरेटरी एक्टिविटी है जिसके अंतर्गत BIS की खुद की तो 8 लैब्स हैं जो कि दे आर नॉट सफिशिएंट कि पूरे हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स उसके अंदर जांच हो पाएँ। तो BIS एक लेबोरेटरी रिकॉग्निशन स्कीम को भी चलाता है जिसके अंतर्गत जो लैब्स उन प्रोडक्ट्स की जांच करती है उन BIS के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनको BIS रिकॉग्नाइज करता है एंड ऑन बिहाफ ऑफ BIS दे टेस्ट द प्रोडक्ट। एज ऑन डेट BIS ने उस लेबोरेटरी रिकॉग्निशन स्कीम के अंतर्गत 333 लैब्स को रिकॉग्नाइज किया है और 62 गवर्नमेंट इम्पैनल्ड लैब्स जैसे IITs हो गई, IITs की लैब हो गई, NBRI, ये सारी लैब्स को भी BIS ने रिकॉग्नाइज किया है। और 8 लेबोरेटरीज BIS की खुद की हैं और 7 रेफरल लेबोरेटरीज हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर की असाइनिंग होती है। हॉलमार्किंग BIS का भी ये एक बहुत मेजर एक्टिविटी है, हॉलमार्किंग स्कीम, जिसको सरकार ने साल 2000 में लागू किया। हॉलमार्किंग पहले वॉलेंट्री थी लेकिन 16 जून 2021 को इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, जो कि भारत की 350 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स लोकेटेड हैं वहाँ पे इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। BIS का एक और मेजर जो एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ट्रेनिंग, ये भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है, तो उसके अंतर्गत भी BIS का काफ़ी योगदान है, जिसमें BIS ने 1995 में NITS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की स्थापना की, जो कि नोएडा में लोकेटेड है, जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन और लेबोरेटरी टेस्टिंग एक्सेट्रा उसकी फील्ड्स के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो दे आर नोडली मॉनिटर्ड बाय नोएडा एंड आर कैरीड आउट एट डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स इन चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, भोपाल, हैदराबाद एंड जयपुर। ऑल्सो BIS इंटरनेशनली भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है फॉर अफ्रीकन, एशियन, यूरोपियन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। BIS का एक पिछले गत वर्षों 3-4 वर्षों में BIS ने एक स्टैंडर्ड प्रमोशन एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी योगदान दिया है, जिसके अंतर्गत हम लोग ने स्टैंडर्ड्स क्लब की स्थापना की, जो कि 9th प्लस स्टूडेंट्स, जहाँ पे साइंस स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे स्टैंडर्ड्स क्लब की स्थापना होती है, जिनको उन बच्चों को हम लोग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताते हैं और BIS क्या करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। प्लस उन्हीं बच्चों को हम लोग एक्सपोजर विजिट्स भी देते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, और हमारे जो भी ISI के लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके हम लोग उनको एक्सपोजर विजिट कराते हैं और उनको क्वालिटी एश्योरेंस और इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड्स क्लब की एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड राइटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, डिबेट्स, ये सारे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, ये सारे कॉम्पिटिशन्स उन बच्चों के लिए करवाते हैं। ये कुछ उन बच्चों का एक मेंटर होता है, मतलब BIS तो ओवरलुक करता ही उनकी सारी एक्टिविटीज़, एक मेंटर्स उन्हीं का ही एक टीचर, एक मेंटर के तौर पे BIS में नॉमिनेट होता है, और उन मेंटर्स को भी हम लोग ट्रेन करते हैं ताकि वो जो एक्टिविटीज़ कराएं अपने यहाँ, वो भी ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम वो BIS से सीखें। हाँ, BIS का एक बहुत मेजर योगदान स्टेक होल्डर कनेक्ट में है, जिसमें हम लोग डिफरेंट लाइसेंसी मीट्स, जो कि नॉन लाइसेंसीज, इवन अपने हमारे मैन्युफैक्चरर्स, हमारे खुद के लाइसेंसीज, उनके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं। कोई नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं तो उनके बारे में हम लोग बताते हैं, कोई स्टैंडर्ड रिवाइज हो जाता है तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। और इसी प्रकार मानक मंथन एक हमारा BIS का एक बहुत
मेजर एक एक्टिविटी है जिसके अंतर्गत कोई भी नया ड्राफ्ट स्टैंडर्ड या फिर कोई ऐसा स्टैंडर्ड जो कि न्यूली पब्लिश्ड है और वी नो कि अगर वहाँ पे आसपास में उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसके लैब्स हैं या उसके ट्रेडर्स हैं उस प्रोडक्ट के, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उस पर डिस्कशन होता है उस स्टैंडर्ड पे। तो BIS रेगुलरली ऐसे भी कार्यक्रम करवाती है। इसी प्रकार BIS कुछ मानक संवाद भी रखती है जिसमें जो कि लाइसेंसीज होते हैं प्रोडक्ट वाइज हम लोग रखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए भी BIS काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के लिए, टेक्सटाइल के लिए। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए इंडस्ट्री सेंट्रिक लाइसेंसी मीट भी या फिर इंडस्ट्री मीट भी करवाते हैं। मानक मंथन के बारे में मैंने आपको बताया। BIS जो स्टेक होल्डर कनेक्ट करता है वो सिर्फ बच्चों तक सीमित ही नहीं है, उसमें हम लोग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ भी मिल के सोसाइटीज़ में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं, BIS के बारे में जानकारी देते हैं। प्लस जो स्टैंडर्ड प्रमोशन एक्टिविटी के अंतर्गत जो हमने अपने जो स्टैंडर्ड्स क्लब बनाए हैं उनके जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है उन बच्चों की, उसमें उनके पेरेंट्स को भी वो ट्रेन करते हैं। इसी प्रकार कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम हमारा होता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। ये कुछ ग्लिम्सेस हैं ट्रेनिंग स्टेक होल्डर कनेक्ट की। इसमें हम लोग इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ तो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते ही हैं। इवन जो जैसे कि आप जैसे SMC के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं और DGVCL जैसे दक्षिण गुजरात वीज निगम लिमिटेड, उनके भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। सेल्फ हेल्प। थैंक यू सो मच। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा पहले बताया आपको कि स्टैंडर्ड्स आर voluntary in nature. However, keeping in mind the public interest, protection of human, animal and plant, safety on environment, prevention of unfair trade practices and national security, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स को भी नोटिफाई करती है जिनको मैंडेटरी कहा जाता है। तो उसके लिए फिर वो सरकार, हमारी भारत सरकार, उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू करती है। तो वो हमारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर, या तो स्टील प्रोडक्ट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, या केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, तो वो उन प्रोडक्ट्स को नोटिफाई करती रहती है। तो उसी के अंतर्गत आता है। तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में जब अगर किसी प्रोडक्ट पे वो लागू हो जाता है तो उन केसेस में प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड, स्टॉक्ड, इम्पोर्टेड और डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट ए ISI मार्क, यानी कि आपको BIS से उस प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के जो कि मैंडेटरी में आते हैं, जैसे कि स्विचेस हो गए, एयर कंडीशनर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, हैंड हेल्ड ब्लेंडर, इलेक्ट्रिक मोटर्स, किचन अप्लाइंसेस में मिक्सर, ग्राइंडर्स और RCCBs, प्लग्स एंड सॉकेट्स, AC मोटर कैपेसिटर्स, AC वॉट आवर मीटर, केबल्स, ड्राई बैटरीज, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टॉयज, इमर्शन वाटर हीटर एंड स्विचेस। इसका एक लाइव डेमो भी हम देंगे, लेकिन यहाँ पे भी जान लेते हैं BIS में मैंडेटरी प्रोडक्ट्स की आप लिस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ बताया गया है। आपको सबसे पहले www.bis.gov.in BIS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। फिर आइदर ये लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो नीचे वहाँ पे लिंक है वो आप क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप स्क्रॉल करेंगे जब, तो नीचे आपको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के प्रोडक्ट्स की वो आ जाएगी कि कहाँ पे आप, वेयर यू कैन सी कंपलसरी ISI मार्क
स्कीम के प्रोडक्ट्स, तो वो देख सकते हैं। जब ये वाला पेज आप एक्सेस कर लेंगे तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट, उसके आईएस, उसका नाम, फिर उसके आने वाला गैजेट नोटिफिकेशन जो सरकार ने लागू किया है वो आपको दिख जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ऐसा दिखता है, जिसमें सबसे पहले तो क्लियरली मेंशन्ड होगा कि वो किस मिनिस्ट्री ने उसको निकाला है। तो आप देखिए ये वाला एक एग्जांपल है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने निकाला है, ठीक है। उसके बाद वो किन चीज़ों पे अप्लाई होगा, ठीक है, वो क्लियरली मेंशन्ड होगा, या किन चीज़ों पे नहीं अप्लाई होगा, जैसे कि इट शैल नॉट अप्लाई टू सच प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स मेंट फॉर एक्सपोर्ट, तो ये एक क्लैरिटी के साथ मेंशन्ड होगा। फिर तीसरा पॉइंट, कंपलसरी यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड मार्क, जिसके अंतर्गत जो BIS का जो रेगुलेशन है, जिसके अंतर्गत इसको मैंडेटरी किया गया है, वो आपको कंपलसरी फॉलो करना है। फिर कौन इसकी सर्टिफाइंग और एनफोर्सिंग अथॉरिटी होगा वो भी क्लियरली मेंशन होगा। तो इस केस में आप देखेंगे कि BIS ही इसकी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है एंड उसकी एनफोर्सिंग अथॉरिटी एज वेल। और पेनल्टी एंड कॉन्ट्रावेंशन, वो किस उसके वायलेशन में क्या पेनल्टीज़ होंगी और क्या कॉन्ट्रावेंशन होंगी, वो BIS के सेक्शन 17, BIS एक्ट के सेक्शन 17 के अंदर डिफाइंड है। और नीचे आपको दिखेगा कि वो कौन सा प्रोडक्ट है, उसका जो डेडिकेटेड IS है वो, और उसका प्रॉपर नाम। तो इसी प्रकार ये तो एक एग्जांपल है, इसी प्रकार कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इस तरीके से मिनिस्ट्री क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू करता है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर BIS एक्ट में सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में डिफाइंड है, जिसमें ये कहा जाता है कि नो पर्सन शैल मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट, सेल, हायर, लीज, स्टोर और एग्जिबिट फॉर सेल एनी सच गुड्स, आर्टिकल, प्रोसेस, सिस्टम और सर्विस अंडर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर विदाउट ए स्टैंडर्ड मार्क एक्सेप्ट अंडर अ वैलिड लाइसेंस। तो ये क्लियरली मेंशन्ड है कि यू कैन नॉट इम्पोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट, सेल, हायर, किसी तरीके की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके साथ आप नहीं कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के वायलेशन में क्या प्रावधान है, उसके जो सज़ा है वो BIS एक्ट 2016 में सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में डिफाइंड है, जिसके अंतर्गत जो सेक्शन 17 है जो कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का जो वायलेशन है उसको जो वायलेट करेगा तो उसमें imprisonment फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 2 years और विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 2 लाख रुपीज़ फॉर द फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन। पहले कॉन्ट्रावेंशन में 2 साल तक की सज़ा और 2 लाख तक का जुर्माना है, और एंड नॉट बी लेस देन 5 लाख फॉर द सेकेंड कॉन्ट्रावेंशन। मतलब अगर आप दूसरी बार भी वायलेट करते हैं, पहला आपके ऊपर केस ऑलरेडी चल रहा है और दूसरा वायलेशन है आपका, तो उस केस में आपके ऊपर 5 लाख का दंड है, बट मे एक्सटेंड अप टू 10 times द वैल्यू ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड और ऑफर्ड टू बी सोल्ड और एफेक्स्ड और अप्लाइड विद ए स्टैंडर्ड मार्क। उसके 10 times वैल्यू ऑफ द गुड्स, इसी बीच में अगर आपने 10 कुछ एक वैल्यू ऑफ गुड्स बेचे, उसके 10 गुना भी सरकार आप पे, उसकी वैल्यू का 10 गुना भी सरकार आप पे दंड लगा सकती है। हाँ, कोर्ट, सॉरी, प्रोवाइडेड दैट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स आर्टिकल्स, जहाँ पे गुड्स और आर्टिकल्स की वैल्यू डिफाइंड नहीं है या हमको किसी तरीके से हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में हम ये प्रिज्यूम करते हैं कि आपने 1 साल में जितना मैन्युफैक्चर किया होगा, 1 year's प्रोडक्शन वॉज इन सच कॉन्ट्रावेंशन इन विच वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। तो उस केस में आपके टर्नओवर के बेसिस पे इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आपके ऊपर दंड लगाया जाएगा। और जो ऑफेंस है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो कि सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 29 में डिफाइंड है। ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट है, आप कैसे BIS में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी हम लोग एक लाइव डेमो भी देंगे, जिसमें आप कैसे आपको BIS में
वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है और किस प्रकार आपको उसके लिए अपने प्रोडक्ट के लिए टेस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करनी है और प्री रजिस्टर करना है सैंपल को और फिर उसकी जांच के लिए सैंपल भेजना है। तो ये सारी जानकारी हम आपको लाइव डेमो में देंगे। BIS ने, क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट्स अभी कंपलसरी सर्टिफिकेशंस में आ रहे हैं और कई ऐसे स्मॉल स्केल यूनिट्स भी आ रही हैं, तो BIS ने प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम को काफ़ी इंसेंटिवाइज किया है, जिसके अंतर्गत BIS अप टू 80% कंसेशन भी देता है, जिसमें 50% कंसेशन टू स्मॉल स्केल, 20% टू मीडियम स्केल एंड 80% कंसेशन टू माइक्रो स्केल इंडस्ट्री इन दी मार्किंग फ़ी। जब BIS के लिए अप्लाई करते हैं तो एक मार्किंग फ़ी देनी पड़ती है, तो उसमें 80% तक का कंसेशन माइक्रो, 20% फॉर मीडियम एंड 50% फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज BIS देती है। सिमिलरली 50% डिस्काउंट इज ऑल्सो गिवन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है और जिनका स्टेक उनकी कंपनी में 51% है, उनको BIS 50% तक का मार्किंग फ़ी में कंसेशन भी देता है। BIS इसी प्रकार प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम को सिंप्लीफाई करने के लिए प्रोडक्ट मैनुअल, जब भी कोई नया प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन में आता है, नया स्टैंडर्ड, तो उसका एक प्रोडक्ट मैनुअल बनाया जाता है, जो कि एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट है, जिसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, उसके अंदर लगने वाले जांच के उपकरण आपको कौन कौन से लगाने हैं, वो सारे क्लॉज वाइज उसमें लिखे रहते हैं। तो एक काफ़ी इससे हेल्प हो जाती है मैन्युफैक्चरर की। उसी इंसेंटिव एक स्कीम के अंतर्गत BIS ने एक और चीज़ BIS ने फॉर MSMEs के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जिसमें जो आपको लैब सेटअप करने के लिए कंपलसरी नहीं है, जिसमें लैब सेटअप करना MSMEs के लिए अभी कंपलसरी नहीं रह गया है। तो उसमें अभी एक बहुत बड़ा एक रिलैक्सेशन BIS ने दिया है। उसी में ही काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, कई बार ऐसे यूनिट्स आसपास लोकेटेड होती हैं, एक क्लस्टर हो जाता है, तो उन क्लस्टर्स को अगर वो डिफ़ाइन करते हैं कि हम एक कॉमन जगह पे जांच करवाएंगे अपने प्रोडक्ट की, और उस प्रोडक्ट की जांच कराने के लिए हम एक लैब को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो फिर हम उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और दिस इज़ ओनली एक्सटेंडेड टू MSMEs। और वो हम क्लस्टर बेस्ड फैसिलिटीज़ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, अगर किसी क्लस्टर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, अगर मल्टीपल एंटरप्राइजेज या मैन्युफैक्चरर किसी एक ज्योग्राफी में आसपास में लोकेटेड है, इन दी क्लोज प्रॉक्सिमिटी इफ दे आर लोकेटेड, देन दे आर कंसिडर्ड एज क्लस्टर्स, एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सेम और सिमिलर और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। उसी सिमिलर या सेम प्रोडक्ट्स अगर वो बना रहे हैं, तो फिर हम उसको क्लस्टर आइडेंटिफाई करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ शेयर्ड क्वालिटी चेक्स एंड टेस्टिंग्स are also looked, then they may be treated as in-house test facilities except for following। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसमें ये क्लस्टर बेस्ड जो मैकेनिज़्म है वो वर्क नहीं करता है। आपको कुछ प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो ऑनलाइन ही चेक करनी पड़ती है। क्लस्टर बेस्ड उन पे ही लागू होगा एक तरीके से कि आप फिनिश्ड गुड एक बार बनाएं और फिर उसको आप जांच के लिए भेजें। तो कुछ जैसे कि टॉलरेंस इन साइज़ एंड ज्योमेट्री, वो तो आपको टेस्टिंग फैसिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी कि आपके पास साइज़ और ज्योमेट्री नापने के लिए, उसका थिकनेस, लेंथ, विड्थ नापने के लिए आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, या फिर उसका विजुअल एग्जामिनेशन करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास होना चाहिए, कुछ ऐसे चीज़ें, या फिर उसकी वर्कमैनशिप जो कि आप उसको देख सकें कि उसके ऊपर प्रॉपरली उसके ऊपर शार्प एजेस नहीं है, बर्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको इन हाउस ही देखनी है, पर जो फिनिश गुड्स की जो टेस्टिंग है वो आपको क्लस्टर बेस्ड में BIS प्रदान करता है। क्लस्टर बेस्ड कुछ इस तरह दिखता है। आप पहला वाला फिगर देखेंगे तो उसमें आप फर्स्ट MSME, सेकंड MSME, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों ने मिलके ये एक ही प्रोडक्ट या सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और एक ऐसा लैब उन्होंने डिफाइन कर लिया है दैट इज़ आउटसाइड देयर प्रेमाइसेस, और वहाँ पे वो अपने फिनिश प्रोडक्ट्स की जांच कराएंगे। तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। उसी प्रकार आप सेकंड इमेज में देखेंगे, चारों MSMEs में से किसी एक, जो MSME नंबर 4 है, उसके यहाँ एक ऑलरेडी लैब सेटअप है।
तो वो चारों MSMEs अंडर देयर अंडर एक agreement they will decide whether they will test in this test facility located in the manufacturer number 4. तो इन दो तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसे क्लस्टर बेस्ड वर्क करता है. थैंक यू सो मच. अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप बता सकते हैं बाद में. सर अभी वो डेमो का बताएं. नहीं, ये जो हमारी BIS की वेबसाइट है कुछ ऐसी दिखती है. इसमें आप एक्चुअली क्या क्या देख सकते हैं, एक जस्ट आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि आप जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है दैट इज़ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर टैब्स दिए हुए कि स्टैंडर्ड्स, देन कन्फर्मिटी असेसमेंट, लेबोरेटरी सर्विसेज, हॉल मार्किंग, ट्रेनिंग, करियर अपॉर्चुनिटी. तो स्टैंडर्ड्स, ये टैब में से आप स्टैंडर्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं. देन कन्फर्मिटी असेसमेंट, जैसे सर ने बोला कि स्कीम 1, स्कीम 2 ये सारे स्कीम हम ऑपरेट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर है वो आप यहाँ पे आ जाएंगे. जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन है, सो इट विल कम अंडर दिस वन. सो ऑल द गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइंस है उसका प्रोसेस क्या रहेगा वो सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा. जैसे मान लीजिए कि फ़ी है, मार्किंग फ़ी के जब बारे में जैसे बताया सर ने, तो अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के लिए आपको मार्किंग फ़ी अगर आपको चेक करनी है, यू कैन चेक फ्रॉम हियर. देन सिस्टम सर्टिफिकेशन, उसके रिलेटेड क्या है, कैसे करना है, ये प्रोसेस आपको यहाँ से दी हुई है. तो आपके लिए तो दो इम्पॉर्टेंट है, एक है प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज़ द रजिस्ट्रेशन स्कीम. ओके, तो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन दैट इज़ नथिंग बट द ISI मार्क व्हाट यू हैव सीन, एंड रजिस्ट्रेशन स्कीम जो आपने CRS मार्क देखा होगा जो मोबाइल्स के पीछे होता है, दैट इज़ नथिंग बट द रजिस्ट्रेशन स्कीम का सिम्बॉल. सो दिस टू स्कीम्स यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर. सेकेंड वन है हमारी जो वेबसाइट है दैट इज़ मानक ऑनलाइन. अगर मान लीजिए कि आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस मानक ऑनलाइन पोर्टल पे पहले तो आपको खुद को यहाँ से रजिस्टर करना है. यू हैव टू रजिस्टर ओवर हियर. इट इज़ वेरी सिंपल, फार मोर सिंपल दैन फेसबुक अकाउंट. सो आप यहाँ से इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. इस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद आगे की प्रोसीजर सर ये बताना है. ओके, तो ये क्रिएट अकाउंट में अगर आप जब जाते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है, जैसे ईमेल आईडी है, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड, देन नेम ऑफ द फर्म, देन आपका बेसिक डिटेल्स, ये आप भर के यहाँ से जैसे सबमिट करेंगे देन यू कैन रजिस्टर. फर्स्ट आपको रजिस्टर करना पड़ेगा. देन रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन करके आपको जैसे मान लीजिए कि लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई करना है तो उसका कैसे करते हैं, आपको जस्ट एक डेमो दे देता हूँ. ये जब आप रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपको बेसिकली दिखेगा प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, हॉल मार्किंग,
देन टेस्ट सैंपल FMCS, देन सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, देन यू हैव टू गो इन द प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम 1 के अंतर्गत। अगर आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपको इसमें जाना पड़ेगा। देन यहाँ पे एप्लीकेशन, ये आपको यहाँ पे टैब दिखेगा, तो अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस एक टैब यहाँ पे दी होगी, तो यहाँ से आप नया एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब जैसे सर ने आपको पहले बताया था कि BIS जो एप्लीकेशन है स्कीम 1 की जो प्रोसीजर है उसमें 2 हमारी प्रोसीजर होती है, एक नॉर्मल और एक सिंप्लीफाइड। तो अगर सिंप्लीफाइड में अगर आप कोई एप्लीकेशन करते हैं तो उसके पहले आपको एक सैम्पल टेस्ट करना पड़ता है। सो उस सैम्पल टेस्ट के लिए ये यहाँ पे टैब दिया हुआ है, टेस्ट द सैम्पल। ओके, तो यहाँ पे आपको जनरेट टेस्ट रिक्वेस्ट करना पड़ता है एंड QR कोड के साथ ये टेस्ट रिक्वेस्ट को आपको लैब के लिए, BIS रिकग्नाइज लैब के लिए सैम्पल को टेस्टिंग करने के लिए भेजना पड़ता है। सो दिस इज़ द जस्ट ओवर लुक ऑफ दैट वन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर प्रोडक्ट नोन है, उसका IS नंबर नोन है, फॉर एग्जांपल 8034 सबमर्सिबल का है ये। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपके पास प्रोडक्ट का पता है, देन डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स पूछता है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, वैरायटी क्या है, देन मोड ऑफ डिस्पोजल, यानी आप सैंपल को रिटर्न चाहते हैं या डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। ये सारी बेसिक डिटेल्स के साथ आप जब ये टेस्ट रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो ये टेस्ट रिक्वेस्ट लैब को विजिबल हो जाएगी। इस टेस्ट रिक्वेस्ट के साथ आपको सैंपल भेजना है। यू हैव टू गेट द टेस्टेड सैंपल फ्रॉम द लैब एंड देन अप्लाई फॉर द लाइसेंस। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोसीजर फॉर दैट वन। ओके सर, अच्छा, ओके, ठीक है। सो सर ने जो आपको बताया था कि आपको मैंडेटरी सर्टिफिकेशन, जैसे मैंडेटरी, हाँ ठीक है सर, ओके बता दें। तो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन स्कीम में स्कीम 1 भी आती है और स्कीम 2 भी आती है। आपके जो प्रोडक्ट है हाउस होल्ड के, तो ये दोनों स्कीम के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर, हाँ हाँ सर, ओके, सो ये आप स्कीम 1 जो प्रोडक्ट अंडर कंपलसरी सर्टिफिकेशन स्कीम के है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको देखना है कि कोई प्रोडक्ट स्कीम 1 यानी ISI मार्क उस पर मैंडेटरी है या नहीं, अगर ये चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सो व्हेन यू गो ओवर देयर, आप जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आती है प्रोडक्ट के साथ और सब कुछ। जैसे मान लीजिए कि OPC IS 269, ये इसका यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मैंडेटरी है, उसके अगेंस्ट कौन सा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर कब इशू हुआ था, ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर द स्कीम 1। कोई ठीक है, ठीक है सर, हाउस होल्ड का ये लेटेस्ट आई मीन जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो आपको सर ने बताया था कि ये लेटेस्ट वाला इशू हुआ है। दिस इज़ द लेटेस्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर रिलेटेड टू द हाउस होल्ड अप्लायंसेस। तो इसमें जो नए प्रोडक्ट ऐड हो चुके हैं उसके बारे में इसमें जानकारी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं। सो यू कैन सी दैट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर। तो इसमें टोटल 85 है। तो ये लेटेस्ट वाला है टेक्सटाइल के रिगार्डिंग, तो अभी नहीं, वो इसमें नहीं आया। हाँ अभी नोटिफिकेशन वेबसाइट में नहीं आया। गैजेट नंबर दो इसका, हाँ ये लिखा, फर्स्ट पेज एक इंडस्ट्रियल मशीनरी का है, सितंबर 24 का, यस फर्स्ट पेज, उसका आगे का पहला पेज, फर्स्ट पेज। नहीं ये नहीं, एक सेकंड, हाउस होल्ड वाला नहीं हाँ ठीक है, एक सेकंड, ये है। तो ये 17 सितंबर को आया हुआ गैजेट है, उसके रिगार्डिंग।
आपने जो ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स और अप्लायंसेस के बारे में जो जानकारी दी, हमारे जो इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बहुत अच्छी जानकारी मिली इसके कि BIS में कितने प्रोडक्ट्स है जो हमारे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंदर आते हैं। उसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको बहुत अच्छी जानकारी मिली। थैंक यू निखिल जी। और ये हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो 150 से ज़्यादा एसोसिएशन इसमें जुड़े हुए हैं और सभी सेक्टर्स के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चैम्बर से जुड़े हुए हैं। तो हमने ये दूसरा हमारा सेशन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। हमारा जो पहला सेशन था तो वो टेक्निकल टेक्सटाइल के ऊपर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक सेशन हमारा अगला हो चुका है, ये दूसरा था। और हम चैम्बर के साथ में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक MOU किया है कि जो भी इंडस्ट्रियल ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर से आती है तो हर मंथ हम एक सेशंस करेंगे। थैंक यू निखिल जी। अभी हमारे दूसरे जो स्पीकर्स है धनराज जी, वो डेप्यूटी डायरेक्टर है साइंटिस्ट सी, have done in MTech in thermal science and bachelor in mechanical engineer, working in BIS since 2020. He was previously posted in Rajkot branch office for prior 2020 to February 2024. In currently posted in Surat branch office previous to BIS. Work as assistant professor under University of Pune for 2.5 years. धनराज जी। थैंक यू सर। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है तो ओवरव्यू ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर द सेफ्टी ऑफ हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इंडियन स्टैंडर्ड्स जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हाउसहोल्ड अप्लायंस के इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, एंड देन इन सम इंडियन स्टैंडर्ड्स विच आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू लुक। तो मैंने प्रेजेंटेशन को 2 कैटेगराइजेशन में किया है कि हाउस होल्ड अप्लायंस के लिए कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, उसका एक जस्ट ओवरव्यू है। एंड देन सेकंड इज़ द इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के लिए कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, उसका एक यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया है। तो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है उसका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, जो अप्लायंसेस है वो गवर्न करने किए जाते हैं IS 302 पार्ट 1 2018। ये स्टैंडर्ड का नाम है और इसका टाइटल है सेफ्टी ऑफ हाउस होल्ड एंड सिमिलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो ये स्टैंडर्ड में एक्चुअली क्या दिया हुआ है, तो आपको स्टैंडर्ड के नाम से ही पता चलता है कि सेफ्टी ऑफ अ हाउस होल्ड एंड सिमिलर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो सेफ्टी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो हाउ दिस स्टैंडर्ड इज हेल्पिंग दैट वन। So this standard deals with the safety, durability and reliability of appliances with respect to the electrical and mechanical construction। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन को मद्देनज़र रखते हुए उसकी सेफ्टी के पैरामीटर, ड्यूरेबिलिटी के पैरामीटर और रिलायबिलिटी के रिलेटेड पैरामीटर के बारे में बात करता है। तो ये स्टैंडर्ड किसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है, तो दोज अप्लायंसेस विच आर फॉर दोज अप्लायंसेस विथ वोल्टेज नॉट मोर देन 250 फॉर सिंगल फेज एंड फॉर 450 वोल्ट फॉर अदर अप्लायंसेस। अभी ये जैसे आपने निखिल सर ने पहले प्रेजेंटेशन में बताया था कि जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो रिवाइज भी होते हैं। तो दिस स्टैंडर्ड IS 302 पार्ट 1 हैज़ बीन रिवाइज एंड इट हैज़ नाउ बिकम 302 पार्ट 1 2024, जिसमें स्कोप जो है स्टैंडर्ड का इसका बढ़ाया गया है। ये स्कोप कैसे बढ़ाया जाता है कि बेस्ड ऑन द एक्चुअल टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड का स्कोप भी चेंज होता है। सो दैट स्टैंडर्ड हैज़ बीन रिवाइज। ओके, तो सेफ्टी ऐसी क्या सेफ्टी मेंटेन करता है स्टैंडर्ड में, ऐसा क्या दिया हुआ है कि जिससे हमारी सेफ्टी मेंटेन होती है या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की सेफ्टी चेक करते हैं। तो सम टेस्ट आर देयर। अगर आप कोई भी इंडियन स्टैंडर्ड देखते हैं तो 2 उसमें टर्मिनोलॉजी आती है कि रूटीन टेस्ट और एक आता है कि टाइप टेस्ट। रूटीन टेस्ट यानी होता है कि जो हर एक सैंपल के ऊपर करना पड़ता है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर करना पड़ता है। और जो टाइप टेस्ट होता है वो जब भी कोई मॉडिफिकेशन करते हैं आप प्रोडक्ट में, प्रोसेस में, देन या डिज़ाइन में, देन टाइप टेस्ट वी हैव टू परफॉर्म। तो रूटीन टेस्ट ऐसे कौन से हैं कि जिससे हमारी सेफ्टी मेंटेन होती है। तो अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ टेस्ट, फंक्शनल टेस्ट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक एंड प्रोविजन ऑफ अर्थिंग। अगर आप ये सारे टेस्ट देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये सारे सेफ्टी से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट,
इसका क्या फ़ायदा है? अगर मान लीजिए कि कोई अप्लायंसेस को मैं हैंडल कर रहा हूँ और अगर उसके पार्ट लाइव होते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है कि जो करंट लीक हो रहा है वो अर्थ को जाए, रादर दैन जो पर्सन उसको हैंडल कर रहा है उसको जाने से बदले अर्थ को जाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ प्रोवाइड करना रहता है, तो दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी टेस्ट। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ, जैसे मान लीजिए कि हाई वोल्टेज कभी कभी आता है, तो हमें वी हैव टू चेक दैट द अप्लायंस इज सुटेबल फॉर द हाई वोल्टेज ऑल्सो, दैट वी हैव टू चेक। फंक्शनल टेस्ट, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि 30 पार्ट 1 जो बात करता है वो अप्लायंस के रिलायबिलिटी के लिए भी बात करता है, तो दैट इज़ नथिंग बट कवर्ड अंडर द फंक्शनल टेस्ट। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक, अगर कोई इलेक्ट्रिकल शॉक, जैसे मान लीजिए कि अगर लीकेज करंट हो जाता है, ह्यूमन में से पास होता है, तो झटका कब महसूस होता है? अगर वो इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो करंट की, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक उसके लिए भी यहाँ पे बात करता है। देन प्रोविजन ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग बहुत ज़रूरी होती है अगर लीकेज करंट यहाँ से पास होता है। देन टाइप टेस्ट, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर जो टेस्ट होते हैं दैट इज़ रूटीन टेस्ट। इसके अलावा अगर डिज़ाइन या कोई भी प्रोसेस मॉडिफिकेशन होता है तो हम उसको टाइप टेस्ट के अंदर उसको टेस्ट करते हैं। तो व्हाट आर द टेस्ट विच आर कंसिडर अंडर द टाइप टेस्ट? तो फर्स्ट इज़ द रेजिस्टेंस टू रस्टिंग। अब देखिए कि आप छोटे छोटे टेस्ट है बट ये सारे कितने एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए कि रेजिस्टेंस टू रस्टिंग, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, एंडोरेंस टेस्ट, एबनॉर्मल ऑपरेशन टेस्ट, क्रीपेज डिस्टेंस, ये सारे टेस्ट है। जैसे मान लीजिए कि रेजिस्टेंस टू द रस्टिंग, गीज़र है फॉर एग्जांपल, अगर गीज़र का आपका मटेरियल अगर अच्छा नहीं होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? रस्टिंग स्टार्ट होना चालू हो जाएगा एंड इट विल इवेंचुअली दैट अप्लायंस बिकम अनयूजफुल। सो रेजिस्टेंस टू द रस्टिंग दैट इज़ कवर्ड अंडर IS, इट टेक्स केयर, उसमें मटेरियल डिफाइन होता है कि उसमें मटेरियल क्या होना चाहिए। देन मॉइस्चर रेजिस्टेंस, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर आप कभी कभी फ़ोन में अगर आपका जो चार्जिंग का वायर है अगर उसमें मॉइस्चर जाता है और चार्जिंग अगर प्लग लगा देते हैं तो फ़ोन आपका इंडिकेट करता है कि मॉइस्चर है उसके ऊपर। ओके, तो मॉइस्चर रेजिस्टेंस ये क्यों होता है? या फ़ोन में आपको दिया रहता है कि IP प्रोटेक्शन कितना है, जैसे IP68 है, IP44 है। सो दैट इज़ नथिंग बट द मॉइस्चर रेजिस्टेंस, कि हमारा अगर अप्लायंसेस मॉइस्चर वाले कंडीशन में जाता है तो उसको कितना रेजिस्ट कर सकता है। ये क्यों ज़रूरी होता है कि मॉइस्चर क्या होता है? जब भी कभी मॉइस्चर आता है तो उसके वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकल फ्लो हो सकता है, और उसके वजह से क्या हो जाएगा? अगर आपके मान लीजिए कि प्लग है, उसके लाइव पार्ट्स है, 2 कनेक्टर है, अगर उसमें मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगा तो 2 कनेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, सो इट विल बिकम शॉर्ट सर्किट। ओके, तो टू अवॉइड दैट वन वी रिक्वायर्ड मॉइस्चर रेजिस्टेंस। देन एंडोरेंस टेस्ट, एंडोरेंस टेस्ट क्यों ज़रूरत है? जैसे मान लीजिए कि आपका आयरन है, अगर उसको बार बार यूज़ कर रहा हूँ, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, बहुत सालों के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कितना ऑपरेशन अच्छे से कर सकता है, तो उसको जांच करने के लिए हमारी जो टेस्ट होती है दैट इज़ नथिंग बट एंडोरेंस टेस्ट। ओके, देन एबनॉर्मल ऑपरेशन, एबनॉर्मल ऑपरेशन यानी क्या होता है? सडनली हम अप्लायंस को ऐसे कंडीशन में लेके जाते हैं कि वर्स्ट कंडीशन उसको हम देते हैं, तो उस वर्स्ट कंडीशन में वो अप्लायंस वर्क कर सकता है कि नहीं, दैट इज़ नथिंग बट द एबनॉर्मल ऑपरेशन। तो ये कौन सी कंडीशन होते हैं कि इम्पल्सिव हाई वोल्टेज हम उसको प्रोवाइड करते हैं। सो इन दैट केस वी चेक द परफॉर्मेंस ऑफ दैट अप्लायंस। देन क्रीपेज डिस्टेंस, जैसे ये आपको यहाँ से डायग्राम से बताया है, जस्ट एक इलस्ट्रेशन है कि क्रीपेज डिस्टेंस क्या होता है। कि जो मान लीजिए कि अगर आपके 2 कंडक्टर है तो उसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको क्रीपेज डिस्टेंस बोलते हैं। ये क्यों ज़रूरी होता है? टू अवॉइड द शॉर्ट सर्किट ड्यू टू अनइंटेंशनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो दैट इज रिक्वायर्ड। देन क्लियरेंस इज ऑल्सो सिमिलर। ये जो क्रीपेज होता है वो फिजिकल डिस्टेंस होता है, क्लियरेंस जो होता है वो एयर में डिस्टेंस मेजर किया जाता है, सो दैट इज बोथ आर सेम। देन मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों? इसके नाम में ही मैकेनिकल नाम है, इसका मतलब उसके कितना स्टेबल है अप्लायंस विथस्टैंड सच रफ। जैसे मान लीजिए कि अगर हम रफ हैंडलिंग कर रहे हैं तो हमारा अप्लायंस कितने अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है, उसको हमें चेक करने के लिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ की टेस्ट प्रोवाइड की गई है। देन लीकेज करंट, मैंने आपको जो पहले बताया था कि लीकेज करंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका इंसुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो लीकेज करंट क्या हो सकता है, आपके अप्लायंस में से पास हो सकता है, एंड दैट कैन बी हार्मफुल फॉर नॉट ओनली फॉर द यूजर बट फॉर आल्सो अप्लायंस also for its functionality. So to take care of that one, leakage current test is also there. Then screw and connection, अगर कोई स्क्रू और कनेक्शंस प्रोवाइड किए हैं तो उसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए भी टेस्ट दी है। देन हीटिंग, आप अगर मान लीजिए कि कोई बैटरी में ने अप्लायंस
जब ऑपरेट होते हैं तो वो हीट जनरेट करते हैं खुद की। तो अगर मान लीजिए जैसे बैटरी है, बैटरी में ऑपरेट कर रहा हूँ तो उससे हीट जनरेट होती है, तो वो सराउंडिंग में कितनी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है, दैट इज़ नथिंग बट द हीट टेस्ट। या मोटर आप ऑपरेट करते हो तो उसका क्या होता है कि उसका टेम्परेचर राइज होता है, दैट इज़ नथिंग बट द हीटिंग। तो कोई भी अप्लायंस में अगर मैं ऑपरेट करता हूँ तो उसका कितना हीट जनरेशन होता है, एक्सेसिव हीट जनरेट होता है नॉर्मल यूज़ में, वो हम यहाँ से मेजर करते हैं। देन ट्रांजिट ओवर वोल्टेज, तो ये क्या होता है कि सडन वोल्टेज सर्चेज और स्पाइक्स, इसमें जो हम अप्लायंस को सप्लाई करके देखते हैं कि वेदर दैट अप्लायंस इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। अब जैसे निखिल सर ने शुरुआत में कहा था कि जब हम प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन या BIS के मार्क बोलते हैं, स्टैंडर्ड मार्क, तो आपने अलग अलग स्कीम्स देखी थी, स्कीम 1, 2, ऐसे अलग अलग स्कीम 10 थे, टोटल 10 स्कीम थे। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 कैटेगराइजेशन में प्रोडक्ट्स दिखा है, एक है स्कीम 1 के अंतर्गत जो प्रोडक्ट आते हैं वो दिखा है, और एक स्कीम 2 के अंतर्गत जो प्रोडक्ट आते हैं वो दिखा है। तो स्कीम 1 यानी जो जिस प्रोडक्ट के ऊपर ISI मार्क ज़रूरी होता है, यानी ISI मार्क आता है, वो यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा है। तो कौन से है, हैंड ब्लेंडर, इलेक्ट्रिक आयन, रेंज हुड दैट इज योर चिमनी, देन इलेक्ट्रिकल इमर्शन वाटर हीटर्स, देन योर मिक्सर, एंड देन योर टोस्टर्स और ग्रिलर्स। ये सारे अप्लायंसेस, ये सारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस है, इसके ऊपर ISI मार्क आता है। अब कुछ अप्लायंसेस ऐसे है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस कि जिसके ऊपर आपको ISI मार्क नहीं दिखेगा, बट BIS का दूसरा स्टैंडर्ड मार्क दिखेगा, दैट इज नथिंग बट द सेल्फ रजिस्ट्रेशन स्कीम। आपने जो देखा था दैट इज SDO मार्क हम बोलते हैं इसको। तो ये मार्क आपको दिखाई देगा, आप मोबाइल के पीछे भी देख सकते हैं ये मोबाइल मार्क। तो ये कौन से अप्लायंस के ऊपर आता है, तो राइस कुकर है आपके, माइक्रो ओवन है, इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स, देन अडाप्टर है, इंडक्शन स्टोव है, ये सारे जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर क्या आता है, आपका CRS मार्क, सेल्फ रजिस्ट्रेशन स्कीम वाला मार्क आता है। ओके, देन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इशू हुए स्कीम 1 अंतर्गत, ओके, ISI मार्क जिसके ऊपर ज़रूरी है, इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे सर ने बोला कि इससे बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू है जो आप BIS की वेबसाइट से चेक कर सकते, बट ये कुछ एग्जांपल दिए हैं कि जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल आयन है, इलेक्ट्रिकल स्टोव है, रूम हीटर्स है, हैंड ब्लेंडर है, टोस्टर, ग्रिल्स, रोस्टर्स है, रेंज हुड्स है, जो चिमनी, अप्लायंसेस फॉर स्किन और हेयर केयर जो अभी आपने देखा था, फैंस, कमर्शियल डिस्पेंसिंग अप्लायंसेस एंड वेंडिंग मशीन्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक क्लोथ्स, ये थोड़े से यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि IS 302 पार्ट 2 सेक्शन और अलग अलग सेक्शन है अलग अलग अप्लायंसेस के लिए। तो जो मैंने आपको शुरुआत में एक स्टैंडर्ड बताया था IS 302 पार्ट 1, वो बेसिक स्टैंडर्ड है, वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के हिसाब से, जो अप्लायंस के हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड हो जाते हैं, वो सेक्शंस हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 302 पार्ट 2 सेक्शन 3 है, वो इलेक्ट्रिकल आयन के लिए, तो अलग अलग सेक्शन में उसका अलग अलग अप्लायंस के बारे में उसकी एप्लीकेबिलिटी दी हुई रहती है। तो ये एक जस्ट एग्जांपल है यहाँ पे कि जो स्कीम 1 के अंतर्गत यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इशू हुए हैं। देन ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, कौन से ऐसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स है कि जिसमें BIS के मार्क्स आते हैं कि ये स्कीम 1 अंतर्गत जो आते हैं प्रोडक्ट, इसके बारे में बात करता है। तो कौन से, मोस्टली सारे केबल्स, जैसे मान लीजिए कि IS 694 PVC केबल है, 554 PVC इंसुलेटेड हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स, देन उसके पार्ट अलग अलग पार्ट है, देन 70998 क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन इंसुलेटेड थर्मोप्लास्टिक केबल्स, उसके भी अलग अलग पार्ट है। तो ऑलमोस्ट सारे केबल्स इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें से कुछ केबल्स, मोस्ट ऑफ द केबल जो है वो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आते हैं, कुछ केबल्स है वो वॉलंटरी नेचर में आते हैं। तो इम्पोर्टेंट टेस्ट इन केबल कौन से आते हैं कि केबल जब भी हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो ध्यान में आता है, तो हमें क्या आता है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस, केबल के अंदर कंडक्टर होता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या है। देन हम जब केबल को हैंडल करते हैं तो उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, शीथिंग होती है, तो उसका कितना प्रॉपर्टी अच्छा है, यानी रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टी कितनी अच्छी है, तो उसको चेक करने के लिए अलग अलग टेस्ट दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हाई वोल्टेज टेस्ट दिया हुआ रहता है। देन आपका केबल अगर मान लीजिए कि FR कैटेगरी का है तो फ्लेम रेजिस्टेंस उसका कितना है, ओके, तो वो चेक करने के लिए दिया है। देन इंसुलेशन थिकनेस की कितनी थिकनेस उसमें प्रोवाइड की है, OIT टेस्ट, OIT ऑक्सीजन इंडेक्स टेस्ट होता है, देन श्रिंकेज टेस्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट इलेक्ट्रिकल केबल के स्टैंडर्ड के अंतर्गत आते हैं।
Then some other products which are covered under the BIS certification scheme 1, that is a 3-phase induction motor, ये मैंडेटरी है. देन सिंगल फेज AC इंडक्शन मोटर फॉर जनरल पर्पजेज, जैसे मान लीजिए कि आपके आटा चक्की में जो मोटर यूज़ होती है, दैट इज़ द 996 मोटर. देन सबमर्सिबल पंप के लिए 9283 है. तो ये और इलेक्ट्रिकल टॉयज़ ये तो मैंडेटरी है, आपको पता है. तो ये सारे स्टैंडर्ड्स है विच आर नॉट एक्चुअली, अगर आप देखेंगे इसका डिफरेंस, ये होम अप्लायंस के जो स्टैंडर्ड्स है वो 302 पार्ट 2 से स्टार्ट होते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है इसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड नंबर आता है. ओके, then this is the QR code. You can scan and go to the what are the products under the compulsory certification scheme that you can download from here and you can visit. Okay. Okay. अगर मान लीजिए कि आपको मार्किंग फ़ी चेक करनी है, मार्किंग फ़ी चेक करनी है किसी प्रोडक्ट की, तो आप यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के अंदर है, तो फ़ी यहाँ इस सेक्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं. सो हाँ, यहाँ पे सर्च मार्किंग फ़ी का ऑप्शन आता है, तो इसमें सर्च मार्किंग फ़ी करेंगे तो ये टैब ओपन हो जाता है. इसमें मार्किंग फ़ी में जाना पड़ेगा हमें. अब जैसे मान लीजिए कि केबल का 694 का मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे मार्किंग फ़ी आता है. तो मार्किंग फ़ी में क्या क्या डिटेल्स होते हैं कि पर यूनिट उसका कितना मार्किंग फ़ी है, और यूनिट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया होता है. तो यूनिट यानी रहता है, जैसे मान लीजिए कि 100 मीटर पे आपको इतना मार्किंग फ़ी पे करना है, सो दैट इज़ द यूनिट. देन मिनिमम मार्किंग फ़ी, यानी अगर मान लीजिए कि आपका अगर कोई लाइसेंस आपने लिया है, आपका प्रोडक्शन जो है, अगर मैंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, इस यूनिट रेट के हिसाब से अगर मैं मार्किंग फ़ी कैलकुलेट करता हूँ, तो मान लीजिए कि वो XI है. और मिनिमम मार्किंग फ़ी आपकी, अगर मान के चलते हैं कि आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, तो Y है. यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 93,000 है, तो 93,000 मिनिमम मार्किंग फ़ी है, और एक्चुअली आपका एक्स अमाउंट ऑफ मार्किंग फ़ी आई है. तो इन दोनों में से जो लार्जर होगी वो आपको एप्लीकेबल रहेगी. ओके, सो दैट इज़ द मार्केट. इसमें जो लिखा हुआ है वो नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन अभी जैसे आप देखेंगे कि मीडियम, स्मॉल और माइक्रो तीनों का सेम लिखा हुआ है फिलहाल 3 सालों के लिए. जो लार्ज स्केल के लिए लिखी हुई है 93,000, तो अगर माइक्रो स्केल यूनिट है तो 93 का 20% से लगेगा. लार्ज स्केल है तो 93 का आधा फॉर 3 years. नहीं, जैसे 100 मीटर्स पे ये है, अगर समझो किसी का बल्क ऑर्डर है और उसको 50 मीटर्स के स्पेयर में चाहिए, ये मीटर्स में यूनिट दिया है कितना, तो आपके साल भर में जितना बनाया, साल भर के, 100 से मान लीजिए आपने 50 लाख मीटर बनाया, उसको 100 से पहले डिवाइड कर दीजिए, तो उतने यूनिट हो गए. उस यूनिट को 0.44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी कैलकुलेटेड मार्किंग फी बनेगी. अगर कैलकुलेटेड मार्किंग फीस मिनिमम से ज़्यादा है तो मिनिमम लगती है, सॉरी एक्चुअल लगती है. अगर मिनिमम से कम है तो मिनिमम. अपर लिमिट नहीं है. अपर लिमिट नहीं. अब जैसे सीमेंट की बात करें, मान लो अंबुजा सीमेंट का एक प्लांट है, वैसे तो सिर्फ 2 पैसे लेता है BIS एक बोरी सीमेंट की, लेकिन कितने करोड़ों बोरी बनता है, लाख सा मीट्रिक टन बनता है, तो वो उनकी मार्किंग ही करोड़ में आती है. ठीक है, लेकिन जो छोटा MSME वाला है उसकी एक्चुअल मिनिमम में आ जाती है, तो वो मिनिमम ही पे करता है. BIS का जो सर्वाइवल है वो लार्ज स्केल यूनिट से आता है. सपोज करो अपोलो टायर, उसके लिंडा प्लांट की हम बात करें तो साल में 3 या 4 जो लाइसेंस है उनसे 1.5 से 2 करोड़ 3 करोड़ आता है. मिक्सर ग्राइंडर का पहले दिखा. एक पीस में 3.5 रुपीज़ यहाँ लेगा. अगर किसी ने 10,000 पीस बनाए तो उसकी 35,000 मार्किंग फी बनी कैलकुलेटेड. और मिनिमम कितनी है? 79. लार्ज स्केल के लिए 79.
और इस माल के लिए आज की डेट में देखें तो वो हो जाएगी आपकी 39। तो अगर 10,000 का पीस बनाएगा 35,000 ही बनेंगे तो वो 50% 39,000 ही देना है। इस हिसाब से मार्केट भी करना है। टायर का दिखा रहा 1633 देखो, ये क्या प्रोडक्ट है? टायर नहीं है, देखो ऊपर 81 कुछ आ रहा है, कुछ अलग है। टायर का एक IS नंबर तो 15633 ऐसा। ये 15633 जो कार के टायर होंगे ना उसका है, और ₹2 पर यूनिट फॉर 1 लाख यूनिट। फिर 1 लाख यूनिट से ज़्यादा बनाएगा कोई तो 1.5 पर यूनिट लगेगा, फिर उससे और ज़्यादा बनाएगा तो 1.35 ही लगेगा। इस हिसाब से मार्जिन भी डिसाइड हो रही है। और जो मार्जिन प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो कम होती जा रही है। बनाया जाता है कि हमने मान लो साल में 4 मार्केट सैंपल लेंगे, 2 फैक्ट्री सैंपल, 2 मार्केट सैंपल, या 4 मार्केट सैंपल, 2 फैक्ट्री सैंपल। उसका जो टेस्टिंग चार्जेस होता है ना, उसके बेसिस पर मार्केट ही कैलकुलेट करता है टोटल। क्योंकि अल्टीमेटली सैंपल हमें एक बार हमने से ले लिया साल भर में, तो फिर आपसे जो टेस्टिंग चार्जेस वो नहीं लेते, हम अपने कॉस्ट पर टेस्ट कराते हैं सैंपल, ये देखने के लिए कि वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं। तो जो भी मार्किंग बनती है वो मेनली कॉस्ट ऑफ मार्केट सैंपल और टेस्टिंग चार्ज उसके। और ये इलेक्ट्रिकल के सिवा बैटरी टूल है उसमें? हर प्रोडक्ट का अलग है। और इंटरनेशनल कंपनी है तो हैं? जैसे अभी चाइना में कंपनी है तो चाइना वाली कंपनी के लिए 2 चीजें अलग, मतलब कोई भी फॉरेन मैन्युफैक्चर सर्टिफिकेशन स्कीम में अगर लेता है, मार्किंग फी का स्ट्रक्चर वही होता है, लेकिन जब वो अप्लाई करता है तो जो BIS ऑफिसर वहाँ जाता है इंस्पेक्शन के लिए, उसके आने जाने के सारे एक्सपेंसेस उन्हें बियर करने पड़ते हैं, रहने के एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। इसके अलावा $10,000 की बैंक गारंटी देनी पड़ती है। वो आफ्टर BIS का पहले नहीं, मतलब जब ग्रांट से पहले, ग्रांट मान लो विजिट हो गई, सैंपल चला गया, पास होके आ गया, ये हुआ कि अब उसको लाइसेंस मिलना है, तो पहले उसको $10,000 की बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। फिर फीस का स्ट्रक्चर यही है। उसके बाद जब भी कभी भी BIS ऑफिसर अगर वहाँ जाएगा किसी भी पर्पज के लिए, तो वो सारे एक्सपेंसेस वहाँ एडिशनल उसे बियर करने पड़ते हैं, जबकि यहाँ के मैन्युफैक्चरर को वो सब नहीं करना। यहाँ वाले के हम अपने कॉस्ट से जाते हैं, वहाँ पर उसको बियर करना। $10,000 बैंक गारंटी? हाँ, $10,000 पर प्रोडक्ट पर लाइसेंस पर लाइसेंस। और इसमें जैसे एक BIS इसको मिल गया बराबर, जिसके बाद इसको जैसे वो हर टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हैं उसमें इंडियन स्टैंडर्ड है। हाँ, उसमें वेराइटीज दी हुई है। तो जो हमारे प्रोडक्ट मैनुअल्स होते हैं उसमें ग्रुपिंग गाइडलाइन दी होती है कि ये वेराइटी एक ग्रुप में आएगा, ये वेराइटी एक ग्रुप में आएगा, तो हर ग्रुप में से कितने सैंपल ड्रा करने हैं वो लिखा होता है। तो जिस ग्रुप के हिसाब से उसने सैंपल ड्रा टेस्ट कराए हैं उसकी उतनी वेराइटीज हमारे उसके लाइसेंस में कवर्ड हो। किसी ने शुरुआत में कम लिया और फिर दोबारा ऐड कराना है, तो वो लैब में अपने से सैंपल भेज देता है, टेस्ट करा के रिपोर्ट BIS को देता है, फिर उसको नई वेराइटी उसका स्कोप बढ़ा देते हैं कि अभी आपके पास ये ऑलरेडी प्रोडक्ट सर्टिफाई करने के लिए टाइम कितना है? अगर इंडियन है और विदिन अगर सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में तो मैक्सिमम 30 दिन, हमारे अपने ऑफिस का एवरेज 18 दिन का। नॉर्मल प्रोसीजर में आपने अपने से टेस्टिंग करा के नहीं दिया, हमने सैंपल टेस्ट कराया, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको अप्लाई तभी करना है जब आप 17 डेज के भीतर इंस्पेक्शन करा सकते हैं। हमने 17 डेज के भीतर इंस्पेक्शन किया, लैब में सैंपल गया, वहाँ से रिपोर्ट जैसे ही आई तो उसके
5 से 7, मतलब नॉर्मली तो 3 दिन ही लगते, मैक्सिमम 7 दिन लग सकते हैं। तो टेस्टिंग टाइम जो लैब ने लिया वो चूंकि हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, और कई बार कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें चाहे वो ड्यूरेबिलिटी हो या ऐसे हो कि 45 डेज का टेस्ट है, पता चला 1000 घंटे पहले उसको ह्यूमिडिटी चैम्बर में रखना है, फिर उसके बाद टेस्ट करना है, या 1000 घंटे चलाने के बाद भी टेस्ट करना है कि वो सेम परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं, तो उसके हिसाब से टेस्टिंग करना। लेकिन अगर आपने पहले से टेस्ट करा के दिया रिपोर्ट BIS अप्रूव्ड लैब से, तो हम उस रिपोर्ट के बेसिस पर आपको विदिन 30 डेज लाइसेंस दे देंगे। और ऐसा भी सुनने में आया कि जैसे इंटरनेशनल कंपनी है तो उधर ऑडिटर जाते नहीं है ऐसा। देखिए, जहाँ अलाउड है वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी मान लो किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए अभी है कि नहीं, वहाँ नहीं अभी कैसे भी जाना है। कंट्री के लिए मतलब हाँ, थोड़ा- तो वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। सर इंडियन कंपनीज ने कैलकुलेट हो जाता है कि कितने पीसेस वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इंपोर्ट हो रहा है तो उस टाइप के कैसे कैलकुलेट होता है कि हाउ मेनी वहाँ से import, जितना भी कंसाइनमेंट वो भेजते हैं, हर कंसाइनमेंट का डिटेल हमारे जो पोर्टल है उसमें ऑनलाइन उनको कि इस कंसाइनीज को इतना क्वांटिटी गया, इस पोर्ट के थ्रू गया, ये तक भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन उनको देनी पड़ती है। अब वो उसी के बेसिस पर उनका जैसे अपना BIS का जो भी नॉर्म्स है इसके हिसाब से इंटरनेशनल जो प्रोडक्शन करता है वो सब दे रहा है अपना, तो भी इसमें थोड़ा वो रहता है, BIS में तकलीफ रहता है, मतलब ऑडिट हो सबका। ऑडिट तो 2 अलग अलग चीजें बताई ना। स्कीम कैसे चलती है, जो हमारी डोमेस्टिक स्कीम है उसमें मिनिमम 1 से 2 बार ऑडिट होता है, सर्विलेंस ऑडिट हम बोलते हैं। पहले FMCS में भी होता था कि साल में 1 बार ऑफिसर वहाँ जाते थे। अभी हमने FMCS में चेंज कर दिया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मैन पावर कि वो हर कंसाइनमेंट का डिटेल हमको ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। वो जिस ब्रांच में, मान लो चाइना की या इंडोनेशिया की कंपनी का मान लेते हैं, इंडोनेशिया की कंपनी ने यहाँ पर सूरत में या मुंबई में कहीं पर मटेरियल सप्लाई किया, वो डिटेल्स मेरे अपने पोर्टल में इमीडिएटली आ जाता है कि इस कंपनी का ये मटेरियल इस इंपोर्टर के पास आया हुआ है, एंड वी आर बाउंड टू टेक मार्केट सैंपल फ्रॉम, हम उसके यहाँ से मार्केट सैंपल लेके टेस्ट कराते हैं। अभी फिलहाल सर्विलेंस के लिए फॉरेन मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन में नहीं जा, लेकिन उनका सैंपल जरूर रेगुलरली टेस्ट करते हैं। जो मैन्युफैक्चरर है वो BIS स्टैंडर्ड से बनाता है, उसका ऑथेंटिफिकेशन कैसे, मार्केट में उसने स्टैंपिंग कर दिया और माल वो ऐसे ही दे रहा है, तो उसको कहीं पे चेकअप है? कुछ तो पहला मेन चेकअप हमारा तो यही है कि फैक्ट्री सैंपल और मार्केट सैंपल हम इनवेरिएबली टेस्ट करा रहे हैं लेकर के। हमने लिया, सैंपल फेल हो गया, फर्स्ट टाइम क्या होगा, हम उसको फेलियर कम्युनिकेट करेंगे कि आपका ये सैंपल हमने लिया, ये रिक्वायरमेंट में फेल हुआ, यू आर एडवाइज टू टेक कैरी आउट रूट काज एनालिसिस एंड टेक करेक्टिव एक्शन। वो हमें लिख के देगा, उसके बाद हम या तो फैक्ट्री विजिट करेंगे या मार्केट सैंपल लेंगे या दोनों करेंगे। हमने उसके बाद फिर से फैक्ट्री सैंपल लिया या मार्केट सैंपल लिया या दोनों लिया, अगर वो फिर से फेल हो गया तो हम लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। और अगर 2 साल के भीतर या लगातार 5 या 6 सैंपल हो गए, मिनिमम 5 सैंपल हो गए, अब 5 सैंपल में से 3 सैंपल फेल हो गए उसके लगातार, तो इवन कैंसिलेशन नोटिस भी इशू होता है कि आपके 5 में से 3 सैंपल फेल हुए हैं, इसका मतलब आप सही क्वालिटी नहीं बना रहे हो, तो वाई योर लाइसेंस शुड नॉट बी कैंसिल्ड। उसने अगर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई दिया तो एक चांस और दे दिया जाता है उसको कि ठीक है आगे से नहीं होगा। बट ये विशियस साइकिल रहती है हमेशा कि अगर किसी का 50% से ज़्यादा फेलियर होगा तो कैंसिलेशन, 33% से ज़्यादा होगा तो सस्पेंशन। तो वो जो सैंपल है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, किसी का कंप्लेंट होता है या नहीं, रूटीन? नॉर्मली भी रूटीन में भी हम लोग कम से कम 2 मार्केट सैंपल, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा नहीं बिकता है या बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन जैसे सीमेंट जैसा प्रोडक्ट है तो कम से कम 4 सैंपल या 6 सैंपल हम साल भर में लेते ही लेते हैं। तो प्रैक्टिकली हर क्वार्टर में हम लोग 1 सैंपल लेने का प्रयास करते हैं जिसका रेगुलर प्रोडक्शन है और मास प्रोडक्शन।
लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, केबल स्विच सॉकेट में ही एंकर का है, पैनासोनिक का, ये सॉरी इसका है, पॉलीकैब का है, ग्रेट वाइट का है, तो इनके पूरे देश में से सैंपल उठते हैं, हो सकता है साल में 20 उठ जाते हैं। तो 4 तो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो 20 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना वॉल्यूम है और कितना। वी आर मोर अकाउंटेबल टुवर्ड्स द कंज्यूमर। दूसरी चीज ये भी है, अब आप अगर प्रेजेंट QCO का ट्रेंड देखेंगे तो क्या है, बेसिकली टेक्निकल बैरियर के रूप में यूज किया जा रहा है, ताकि बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं, डंपिंग हो रही है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल आ रहा है, उसको हम वो करके अपने यहाँ की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सकते। बात अलग है कि कुछ एज ए इंडस्ट्री आपका रॉ मटेरियल है जो कि मैंडेटरी हो गया। आपको अगर सब इलेक्ट्रिकल वाले हैं, मैं अभी ये मान के चलूँ, आप कापर यूज करेंगे, एल्युमिनियम यूज करेंगे, तो जितने भी टाइप के कापर या एल्युमिनियम की चीज़ें हैं, मेटल, वो सब आज की डेट में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में आ चुकी है। तो आप अगर डोमेस्टिक से ले रहे हैं तो आपको ऐसे ही मार्क लेना है, आप अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी आपको BIS की वेबसाइट से वेरीफाई करके कि वो वेंडर के पास FMCS के अंतर्गत BIS का सर्टिफिकेशन है, तभी आप उसको लेंगे। अगर बाई चांस आपने नहीं लिया तो कस्टम में आपका रुक जाएगा, वो मटेरियल आपको कस्टम रिलीज नहीं करेगी। तो एज ए इंडस्ट्री भी आपको QCO के बारे में, ठीक है, आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो तो मैंडेटरी है, तो आपको वो भी देखना है। फिर कई बार ये होता है इंटरेस्ट हमारा कि हमें बाहर से इंपोर्ट करने का, तो ये चीज़ सस्ती मिल रही है, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स से महंगी मिल रही है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। उसमें तो यही है कि जो प्रेजेंट पॉलिसी है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की, तो जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आ रहे हैं वो इसी हिसाब से आ रहे हैं। अब जैसे पहले हम आज से 4 साल 5 साल पहले, आप सब लोगों के छोटे बच्चे रहे होंगे, आप खिलौने लाते रहेंगे, सारे मेड इन चाइना बने दिखते थे। सारा का सारा टॉयज इंडस्ट्री हमारी पूरी ख़त्म थी, सब कुछ हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 2000 से वो कंपलसरी किया कि टॉयज बिना ISI के नहीं आएगा, नहीं बिकेगा और ना इंपोर्ट होगा। आज की डेट में आप अगर देखेंगे तो 80 to 90% टॉयज आपके मेक इन इंडिया में। तो मेन पर्पज ये है। यही चीज़ स्टील इंडस्ट्री एक समय कितनी खराब स्थिति हो गई थी, मेरे ख्याल 2005 से 10 के बीच में, कि यहाँ की सारी इंडस्ट्री बुरी हालत में थी। आज की डेट में 195 इंडियन स्टैंडर्ड स्टील के मैंडेटरी है, मतलब 97 to 98% स्टील जो इस बहुत स्पेशल स्टील को छूट दिया गया, वो सब मैंडेटरी में। उसी की वजह से आज अपनी इंडियन स्टील इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी कंडीशन में। टायर्स में भी यही है, शुरू में तो हीचेज हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, बट उसके बेनिफिट्स भी लॉन्ग टर्म में, एटलीस्ट अभी हमने फेलियर नहीं देखा। शुरू में तो हर किसी को लगता है कि मुझे तो महंगा पड़ रहा है कापर, मुझे तो एल्युमिनियम अब जो खरीदूंगा वो महंगा पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ वाले से, लेकिन अल्टीमेटली हमारा बेनिफिट 2 साल 3 साल में दिखे। सर वो असेंबली कर रहा है, तब मैन्युफैक्चरिंग में इसी असेंबली कर रहा है कि उसके ऊपर ही बायस होता है। देखिए हमने जो वो कर रखा है, अगर आप कोई असेंबलिंग भी कर रहा है, फिनिश्ड प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो यू आर आल्सो मैन्युफैक्चरर, BIS विल गिव लाइसेंस टू यू आल्सो। प्रोडक्ट अगर आपके यहाँ बन रहा है फिनिश होकर के, तो यू आर ट्रीटेड एज बनाता नहीं बाहर से, अरे रॉ मटेरियल लाए, कंपोनेंट लाए, असेंबल करके फिनिश प्रोडक्ट तो आपके यहाँ बना ना। हम इलेक्ट्रिक आयरन का ही ले लें, उसका एलिमेंट अलग होगा, प्लेट अलग होगी, हैंडल अलग होगा, वो सब आपने बाहर से लिया और आपने अपने यहाँ पर असेंबलिंग किया, अपना ब्रांड लगाया, या हो सकता है 4 लोगों को अलग अलग ब्रांड से दे रहे होंगे,
तो 4 लोगों के ब्रांड लगाए, बट यू आर मैन्युफैक्चरर। सर इसके रिलेवेंट क्वेश्चन है कि वो आईएस में आता है या नहीं आता, वो कैसे प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई हो उसको सकता है? आपको इंडियन स्टैंडर्ड का जो 700-800 2000 का लिस्ट है उसको वेरीफाई करना पड़ता है। नहीं, पहली चीज तो 700-800 की नहीं, एक्चुअल तो 23,000 से ज्यादा स्टैंडर्ड। नो योर स्टैंडर्ड में जाएंगे, कीवर्ड से पहले आप स्टैंडर्ड सर्च कर लेंगे कि आप जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड इंडियन स्टैंडर्ड है कि नहीं। फिर साब मोर और लेस मैक्सिमम इंडियन स्टैंडर्ड फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है, बीआईएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली दिखा होता है, मान लो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है तो कितने से कितने वोल्टेज तक के कितने टाइप के होंगे, वो सब उसमें स्टैंडर्ड में डिफाइन किया हुआ है, वेल डिफाइंड है। तो वहां से इंटरनल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हाँ, के साथ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, तो वहां से कॉपर है, आपको जिंक है, एल्यूमिनियम क्या, वो सब उसका नहीं वो नहीं है, हाँ। देखिए अलग चीज है। मान लो सॉकेट की बात करें, नहीं सर, अभी हाइब्रिड का जमाना आ गया है, समझो ओरिजिनल कॉपर के कंपोनेंट से सब चीज बनती थी, अभी एल्यूमिनियम और मेटल्स यूज होने लगे हैं। आपका फिनिश प्रोडक्ट जो है उसमें हो सकता है कुछ कॉपर यूज हुआ हो, कुछ एल्यूमिनियम यूज हुआ, तो जो आप फिनिश प्रोडक्ट है वो आपको देखना है कि स्टैंडर्ड में कवर्ड है कि रॉ मटेरियल तो हर चीज सब चीज परमिटेड होती है, उसमें लिखा होता है ना कि आपकी ये स्क्रू है, कॉपर का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, आपका जो बॉडी है इंजीनियरिंग प्लास्टिक हो सकती है, एबीएस हो सकता है, यूरिया हो सकता है, तो वो कुछ भी होगा, वो सब स्टैंडर्ड में डिफाइन है कि क्या क्या चीज परमिटेड है, उसमें से फिनिश जो प्रोडक्ट बना वो स्टैंडर्ड में आ रहा है कि नहीं। सर दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि आपने प्राइवेट लैब्स किया, मैं इलेक्ट्रिकल सेगमेंट की बात करता हूँ, तो ये साउथ गुजरात में से प्राइवेट लैब्स कौन अपना आइडेंटिफाई? बड़ौदा में आपकी 2 हैं, ERDA और ERTA, ठीक है। बाकी बॉम्बे में हमारी अपनी लैब है, सूरत, वापी और कोई जगह नहीं है। देखिए सिंपली मार्केट ड्रिवन चीज है, जहां पर जरूरत होती है लोग डेवलप करके बीआईएस रिकॉग्निशन लेंगे। सर जैसे टेक्सटाइल मशीनरी जो इंपोर्ट हो रही है चाइना से, उसके अंदर भी पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, और हाउ इट विल कवर अंडर बीआईएस? अभी फिलहाल अगर कंपोनेंट उसमें लगा हुआ मशीनरी के साथ, मान लो कहीं स्विच लगा है वो किया है, तो उसके ऊपर कोई नहीं लगा, लेकिन अगर स्विच अलग से इंपोर्ट आपने किया भाई साहब, ये कोई भी कंपोनेंट जो कि मैंडेटरी में है, उसके अंदर भी एमसीबी वगैरह स्विच के लो वोल्टेज स्विच के हाँ, तो वो अभी इस माइक्रो लेवल तक नहीं है। सर मेरा सवाल इसके लेकिन रिलेवेंट ही था। उसी को काउंटर एक्ट हो सकता है करने के लिए, एटलीस्ट सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। उसके बारे में हम अगला प्रोग्राम शायद उसी के बारे में रखेंगे, जो है मशीनरी से सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, क्योंकि उसमें तब तक हमारे पास भी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। राइट। और दूसरा चीज सर जानना था, जैसे टॉयज का सिस्टम आपने बताया कि हाउ टू मेक इन इंडिया को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हाउ यूजिंग स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, बिकॉज सम टॉयज मैन्युफैक्चर इन चाइना वो लोग भी कर सकते हैं ना ये सब स्टैंडर्ड रेंज, लेकिन उसको फिर कैसे रजिस्टर? सिर्फ क्वालिटी में, तभी मैंने कहा ना क्वालिटी तो आपकी यूएसए वाला मंगाओगे और अच्छा बनेगा, जर्मनी वाला मंगाओगे वो और भी अच्छा होगा, जापान से मंगाओ। मेन पर्पज क्या है? टू डंपिंग वर्क नहीं, मतलब अपनी यहाँ की इंडस्ट्री, अपने यहाँ मेक इन इंडिया को बढ़ाने का, अपनी इंडस्ट्री को सब, आप अगर सब कुछ बाहर से लेने लगेंगे अमेरिका जैसे, तो इतने बड़े देश के लोगों का पेट कैसे भरेगा अगर आप यहाँ नहीं बनाएंगे? नहीं, हम लोग बनाएंगे, लेकिन मेरा कहने का क्वेश्चन ये है कि उनको बीआईएस कैसे फिर कंट्रोल करती है, मतलब वहाँ के डंपिंग को रोकने के लिए? उसके पहला चीज तो बीआईएस का सर्टिफिकेशन इनके पास होना जरूरी हो जाएगा, तो वो तो कर लेंगे ना, वो कर लिया, सपोज करो कर लिया उन्होंने। उसके बाद जितने भी कंसाइनमेंट आ रहे हैं हम उनसे सैंपल ले रहे हैं और अपनी लैब में टेस्ट करा रहे हैं, और अगर फेल हो रहा है तो फिर उनके खिलाफ तो ज्यादा सेवियर एक्शन ही यहाँ की तुलना है। तो बजाय ड्यूटी बढ़ाने, ड्यूटी हाँ, तो ड्यूटी आप डब्ल्यूटीओ में बढ़ा नहीं सकते ना, आप डब्ल्यूटीओ के सिग्नेटरी हो गए तो आप एक निश्चित उससे ड्यूटी नहीं बढ़ा सकते ना, तो ये टेक्निकल बैरियर है, डीसीजे टेक्निकल बैरियर। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनको जो बीआईएस लेने में, हाँ, वो जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के चक्कर में या तो अपना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, और फिर अल्टीमेटली अब उनको सब कुछ
इतना ज्यादा क्या वॉल्यूम यहाँ पर दे रहे हैं क्या कि उन्हें ओवरऑल कास्ट वो पड़ेगी। अगर बहुत हाई वॉल्यूम होगा तो उन्हें पड़ेगी, नहीं हाई वॉल्यूम होगा एक्सपोर्ट का तो फिर वो कहेंगे कि नहीं भैया हमें नहीं देना है ये वाली। सर आई एम द रिटेलर, तो रिटेल में जो अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, मिक्सर है, हैंड ब्लेंडर है, आयरन है, टोस्टर है, तो बहुत सारे तो स्टैंडर्ड कंपनी भी है, जैसे प्रेस्टीज का दिखाया, फिलिप्स का दिखाया और भी है, और बहुत सारे तो ऐसा दिल्ली मैन्युफैक्चर और भी बहुत है, उसका माल भी बहुत डैम हो रहा है, तो उसका कैसे? दो चीजें हैं कि ऐसे ही मार्क्ड है और किसी एज ए कंज्यूमर आपकी शिकायत है, यू कैन ऑलवेज कंप्लेन की ये मटेरियल सर्विस स्टैंडर्ड है, आप टेस्ट कराइए, अगर फेल होता है वो होता है तो सब हमारे पास आती है कंप्लेन। इसमें बेचने वाले को पैनलाइज करने का कोई मतलब उनको तो कुछ पता ही नहीं है। एक्ट का पता वही, इसीलिए तो सब जगह हम लोग जाते हैं। कैन यू बिलीव? नहीं, अब समझो कि इलेक्ट्रिकल ये व्हाइट गुड्स ये जो है अप्लायंसेस बेचने वाले, यहाँ पे दुकान, सिंपल बात, यहाँ पे दुकान 2000 होगी, यहाँ 20 लोग ये आए। एसोसिएशन लीडर इसलिए बोलने का हिम्मत करता है, कोई रिटेलर या ट्रेडर को इतना बोलने का हिम्मत नहीं करेगा। नहीं मैं वही बता रहा एसोसिएशन का हूँ लीडर इसलिए बोलता है, मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे SGCCI ने सर्कुलेट किया, ठीक है, बाकी बाकायदा लिंक भेजी, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं सब मेंबर्स होंगे, उन्हें पता चला होगा, तो अगर हमें कुएं के मेढक ही बने रहना है, बाहर की जानकारी नहीं लेना, तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हमें पता नहीं था इसलिए हमारे ऊपर रेट क्यों किया तुमने। नहीं, जिस हिसाब से आइटम बढ़ते जा रहे हैं तो अवेयरनेस की तो और ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें अवेयरनेस खाली अलग अलग जैसे आइटम्स है, अलग अलग एसोसिएशन है, उसके मार्फत भी आपको कहीं ना कहीं सक्रिय तो रहना पड़ेगा। अभी अगर हम नॉलेज 0% है लोगों पिछले को। 1 साल की बात करें तो मैं बता दूं, पहले हमारे पास सूरत से आगे के सारे डिस्ट्रिक्ट थे, तो कोई GIDC नहीं बचा होगा जहाँ की एसोसिएशन के साथ मिलकर हमने 1 या 2 या 3 प्रोग्राम नहीं किए। पेपर्स में रेगुलर एडवर्टाइजमेंट हम लोग दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कंपलसरी में है, न्यूज में भी आ रहा है, तो अवेयरनेस के लिए भी है, सब कुछ कर रहा है, और उसी कड़ी में तो हम लोग यहाँ आते हैं। सब मुझे ऐसा लगता है with the permission of NH भाई, because he heads this program just now, कि ये एसोसिएशन लीडर्स को हर एक प्रोडक्ट में क्या है क्या नहीं, जैसा आप ट्रेनिंग का सेशन करते हैं ना, अपने वापी का एक वो दिया स्कूल का ऐसा कुछ, तो ऐसा कोई एसोसिएशन के लिए भी कोई ऐसा कोई अवेयरनेस के लिए लीडर्स के लिए कुछ નહીં દિલીપભાઈ, આપણે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી વાઇઝ દરેક એસોસિએશનને આગળ આપણે જ્યારે સેશન કરેલું હતું સિંહ સાહેબના અંડરમાં ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલમાં, ત્યારે ટેકનિકલ ટેક્સટાઇલની એસોસિએશન દ્વારા પણ એમને સપોર્ટ આપણે લીધેલું હતું। આજે આ જે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલનું હતું તેમાં रिटेल सेक्टर्स के प्रमोद इसके पहले यान वालों के यान वालों के था, उसके पहले पेट्रोकेमिकल के लिए पण હતું, ने दरेक एसोसिएशन ने આપણે जोड़ता रहिए, मंत्रा के थ्रू किया, तो इस तरह के कर रहे हैं हम लोग। बाकी ये है कि हाँ, देश बहुत बड़ा है, बीएस में कुल मिला के 500 और लेकिन ये रिटेल जो जिस तरह से इसमें यदि कोई प्रोडक्ट फेल होता है तो किस तरह की क्या क्या लाइबिलिटी आती है? पहला कि इसमें रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर नहीं सभी हमारे लिए तो जिसने सर्टिफिकेशन ले रखा है ही इज अकाउंटेबल। रिटेलर सैंपल फेलियर में रिटेलर की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। जिसने बीएस सर्टिफिकेशन ले रखा है, जिसने आईसी मार्क लगाया, जिसका लाइसेंस नंबर लगा हुआ है, ही इज। तो लास्ट 3 मंथ में किसी का लाइसेंस सस्पेंड हुआ या किसी के ऊपर कोई, मैं अगर आज का डेट अगला में डेटा बताऊं, मैं नाम नहीं बताऊंगा ऐसा है, लेकिन आज की डेट में मेरे 51 मेरे टोटल मेरे पास 2050 के आसपास लाइसेंस है मेरे अंदर में। 51 कैंसिलेशन नोटिस के अगेंस्ट में है और ऑलमोस्ट 80 सस्पेंशन की स्टेज। तो ये सब साइकिल से मान लो किसी को सस्पेंशन हो गया, फिर उसने कलेक्टर एक्शन लिया, सैंपल पास हो गया तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है, लेकिन हमेशा कुछ कैंसिलेशन कुछ सस्पेंशन रहती है। मगर कुछ कंपनी जिन्होंने बीआईएस लिया हुआ है वो बीआईएस को मार्केट में डिस्प्ले नहीं कर रही है,
मैंडेटरी प्रोडक्ट है तो वो नहीं बेच सकते। वॉलंटरी में ये है कि उन्होंने जितना ISI लगाया उतना ISI लगाया, जितना नहीं लगाया उन्होंने ना ISI में अगर कोई शिकायत होगी तो एज ए कस्टमर कोई भी कंप्लेंट करेगा, वी विल टेक एक्शन। अगर वॉलंटरी प्रोडक्ट है तो उसमें अगर नहीं ISI लगा तो अभी फिलहाल हम लोग फिलहाल मार्केट में ऐसा सिचुएशन चालू है कि रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ पे उसको असेंबल किया जाता है और उसके ऊपर BIS सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। नहीं, रिक्वायरमेंट रहती है अगर मैंडेटरी में प्रोडक्ट है तो आज भी असेंबल हो रहे हैं, हमें पता है, और एज असेंबलर हम उनको लाइसेंस भी दे रहे हैं, लेकिन मैंडेटरी प्रोडक्ट है तो लेना है। अदरवाइज तो आप लोग अगर पेपर देखे होंगे पिछले 1 साल के भीतर हमने कितनी टॉयज ट्रेडर्स के ऊपर एक्शन लिया। कंप्यूटर के पार्ट जो आते हैं उसका क्या टेस्टिंग का नहीं, वो कंपलसरी में नहीं है कंप्यूटर का कोई भी पार्ट। कंप्यूटर एज ए सच लैपटॉप कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन स्कीम में है, और रजिस्ट्रेशन स्कीम में ये होता है कि जो भी आप मॉडल, मान लीजिए आप अगर मोबाइल अपना पीछे देखेंगे तो वो मॉडल का टेस्टिंग करा के रिपोर्ट आपको BIS में उस मतलब को देना पड़ता है। ये देखेंगे, ये रजिस्ट्रेशन मॉडल जो भी नया मॉडल आ रहा होगा कंपनी का वो BIS रिकॉग्नाइज्ड लैब से टेस्ट करा के वन टाइम नहीं ऑल ओवर इंडिया है, और लिस्ट वेबसाइट से लेबोरेटरी में जाकर के IS वाइज रिकॉग्नाइज्ड लैब की अगर लिस्ट देखेंगे उसमें सभी जितने ऑल ओवर इंडिया रिकॉग्नाइज्ड लैब होंगी वो मिल जाए। कंप्यूटर का जिक्र होता है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक में ये जो प्रोडक्ट डिफाइन होता है वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होता है ना? हाँ बिल्कुल, इंडियन स्टैंडर्ड है। ये है कि काफ़ी सारे सिर्फ सेफ्टी रिक्वायरमेंट के हैं, जरूरी नहीं कि परफॉर्म इसका मोबाइल का परफॉर्मेंस वाला तो हर तो 3 महीने में चेंज हो जाता है हर चीज़, तो उसका स्टैंडर्ड नहीं होगा, लेकिन हाँ बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अगेंस्ट में ये रजिस्ट्रेशन। और जो लोग एक आदमी है जो पूरा स्टैंडर्ड मेंटेन करता है और एक आदमी है जो बिल्कुल मेंटेन नहीं करता है, तो दोनों कैसे अगर पकड़ गए तो जो उसे करना पड़ेगा, जब तक नहीं पकड़े जाते तो इनका स्टाफ ही नहीं है ना, कह रहे हैं ना सर। जो ISO होता है वो मैंडेटरी BIS होता ही है। ISO देखिए, ISO का थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। पहली चीज तो ISO जो 9000 की अगर आप बात कर रहे हैं वो सिस्टम सर्टिफिकेशन, आपने ये डिक्लेयर किया कि आप क्वालिटी कुछ भी हो, मैं इस प्रोसेस से इस तरह का क्वालिटी दूंगा और मैं अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई रखूँगा, ठीक है, तो आप ISO उस प्रोसीजर के लिए, उस प्रोसेस के लिए ले सकते हैं। लेकिन आप कोई प्रोडक्ट इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से आप जब आप क्लेम करोगे या BIS का सर्टिफिकेशन ले रखा है तो इंडियन स्टैंडर्ड में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको कंपलसरी करनी है। वो IS है। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन अलग चीज है, सिस्टम सर्टिफिकेशन अलग। हाँ सर, ISO तो अलग है जैसे, लेकिन आपने बताया BIS इज कनेक्टेड विद द IEC, तो नॉर्मली जो इंपोर्टेड गुड्स आते हैं उसमें IEC नॉर्म्स फॉलो करते हैं जैसे यूरोपियन, तो इट इज बाय डिफॉल्ट ISI और नहीं बिल्कुल नहीं, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं। अगर उनको ISI लेना है तो भले ही हमारा इंडियन स्टैंडर्ड अगर आप इलेक्ट्रिकल के देखेंगे तो काफ़ी सारे में IS/IEC लिखा है, तो IEC का स्टैंडर्ड ही हमने अडॉप्ट किया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन्हें ऐसे ही माल यूज करना है तो हम सैंपल ड्रा करेंगे या वो BIS लैब से टेस्ट करा के रिपोर्ट देंगे तभी उनको मिलेगा। सिर्फ क्लेम के IEC है फिर तो कस्टम में प्रॉब्लम इंडिया में करना है तो થેન્ક યુ વેરી મચ। આપણે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સ માટે BIS એક જરૂરી પહેલું છે ને BIS એને માટે આપણે થેન્કફુલ કહેવું જોઈએ BIS ને કે BISનું એવું કામ। એક મિનિટ પ્લીઝ, BIS એક જ મિનિટ બેસજો। BISનું ખાલી કે બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડનું એટલું જ કામ નથી કે જ્યારે એ લોકો સ્ટાન્ડર્ડ્સ નક્કી કરે છે, એમનું આ અવેરનેસનું પણ કામ છે કે જે આપણા ઇન્ડસ્ટ્રી માટે અવેરનેસ સેમિનાર્સ કે દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી વાઇઝ દરેક એસોસિએશન વાઇઝ પણ કરે છે। તેને માટે ખરેખર આપણે BISનો આભાર વ્યક્ત કરવો જોઈએ ને રિટેલર્સ માટે પણ
BIS જાગો ગ્રાહક જાગો કરીને પણ એક મુહિમ ચલાવે છે કે રિટેલર્સ જ્યારે ડાયરેક્ટ એન્ડ યુઝરને પણ એને માટેનું અવેરનેસ BIS ચલાવે છે. હું હવે અમારા પ્રમોદભાઈ ભગત જે ચેરમેન રિટેલ કમિટીના છે એમને વિનંતી કરીશ કે વોટ ઓફ થैंक्स करें. एक हमारा सुझाव है कि आप छोटे छोटे इमेज बना के और उसको अभी से व्हाट्सएप वगैरह के लिए अगर भेजते हैं, संस्थाओं में भेजते हैं, संस्थाएं आगे भेजती रहती है, रिटेल ग्राहक तक भी पहुंचता है, तो एक मेंटली प्रिपरेशन उसके लिए होना जरूरी है. तो आप जनरली अखबार में देते हो या और भी कई जगह देते हो, वो तो ठीक है कि कुछ लोगों को ध्यान रहता है, परंतु जो इमेज बन करके अगर उसको आगे बढ़ेगी तो कहीं फेसबुक पे मिलेगी, कभी व्हाट्सएप पे मिलेगी, उसको नीचे तक एक सोशल प्लेटफॉर्म पे ले जाना जरूरी है, उसको थोड़ा ध्यान देना उसके लिए हालांकि हम लोग SGCCI को भी मेल भेजते हैं, जो भी नए QCO आते हैं जो QCO की कापी के साथ नीचे के लेवल तक एक ग्राहक भी जागरूक हो, व्यापारी भी जागरूक हो, रिटेलर भी जागरूक हो, सेमी होलसेलर ऐसे करके पूरा एक जागृति आना चाहिए. नहीं तो उस चीज़ को आप खाली एक अगर ऐड दे दिया या अखबार में दे दिया, वो बहुत कम लोग उसको, क्योंकि इंग्लिश में होती है तो जनरली तो छोड़ भी देते हैं, ये भी ध्यान रखना. तो आपको लैंग्वेज जो जिस लैंग्वेज में जहाँ के ग्राहक है या रिटेलर्स है या व्यापारी है, उसको भी वैसा देना चाहिए. વેપારી મિત્રો, આજે રિટેલ ટ્રેડ કમિટીની અંદર આજે ઇલેક્ટ્રિકલના BIS માટે જે પ્રોગ્રામ રાખ્યો એમાં શ્રી સિંહ સાહેબ, શ્રી નિખિલરાજજી અને ધર્મેન્દ્રજી તથા ઘણા વક્તાઓએ સવાલો પણ પૂછ્યા. સિંહ સાહેબે ખૂબ જ વિસ્તારપૂર્વક દરેક પ્રશ્નોના એવા સરસ જવાબ આપ્યા અને બધાને સંતોષ થયો હશે. હું આ તબક્કે અમારા પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી દિલીપભાઈ ચશ્માવાલા, અમારા કો ચેરમેન શ્રી ચંપાલાલ બોત્રા, શ્રી બિપિનભાઈ મોદી, શ્રી મિતેશ શાહ અને અમારા સિલ્વા આપણે નહીં નૈનેશભાઈ અમારા એના ચેરમેન છે, જોએમચાંદ જ્વેલરીના ચેરમેન નૈનેશભાઈએ સરસ રીતે આપને ગાઈડ કર્યા. એ બદલ હું આપનો તથા આપના સૌનો આભાર માનું છું. ખાસ કરીને આ જે વક્તાઓએ આપણને ગાઈડ કરાય એમાં આપણે આગળ વધશું. એક ખાસ વિનંતી સાહેબ છે કે દિવાળીનો તહેવાર હતો અને આ પ્રોગ્રામ રખાયો. 4 દિવસ પહેલાં મને ઇન્ફોર્મેશન આપી કે ભાઈ આ પ્રોગ્રામ કરવાનો છે. ઇલેક્ટ્રિકલ એસોસિએશન, ઇલેક્ટ્રોનિક એસોસિએશન બધાને રિક્વેસ્ટ કરી, પણ આજે લોકોની ઘરાકીનો દિવસ એટલો બધો છે કે બધા આવી શક્યા નથી. એ બધા હું ક્ષમા કરું છું. પણ આ લોકો માટે, બંને માટે એક સ્પેશિયલ પ્રોગ્રામ પાછો આપણે કરીશું દિવાળી પછી. એ લોકોની ખાસ ઈચ્છા છે કે આ પાછો એક પ્રોગ્રામ પણ આ લોકો માટે ફરતી કરશું, કારણ કે દિવાળીમાં લોકો આવી શક્યા નથી. તે सिंह साहब, प्रमोद भाई हमारे मार्गदर्शक, हमारे वडील और पूरे सूरत और साउथ गुजरात में वो रिटेल्स के चेयरमैन हैं और सभी गुजरात के चेयरमैन इंडस्ट्रीज है उनके भी वो चेयरमैन रहे. गुजरात चैप्टर के चेयरमैन है और सभी जो छोटे जो भी रिटेल कोई दिक्कत नहीं सर. प्लेस वेन्यू आपका रिटेल इंडस्ट्री में जितने भी रिटेलर्स हैं अलग अलग सेगमेंट में सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं. और गुजरात का हमारा जो ऑल इंडिया एसोसिएशन है, कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यानी मैं गुजरात का चेयरमैन हूँ और गुजरात में मेरे साथ 800 एसोसिएशन जुड़े हुए हैं. और सूरत में आप ज़्यादा गाइड कर लोगे तो 40,000 संस्थाओं तक बात पहुँच जाएगी. तो मैं आप सबका, जो यहाँ पधारे व्यापारियों का भी आभार मानता हूँ और आप सबका खास आभार मानता हूँ कि आपने खूब गाइड किया सर. थैंक यू.